International T20 Super 8s have kicked off in style. And in similar flair, Rawalpindi welcomed the inclusion of skipper Shadab Khan and Mohammad Nawaz, who stamped their arrival with the ball and bat. The duo first rescued with willow in their hands as Rawalpindi succumbed to a top-order collapse. With leather, they choked the runs at both ends and in process jolted Aptabad to defeat. Bujdil Shah's FATA were met with a fierce bowling attack of Sialkot, who could not salvage a comeback after posting a modest target. FATA will be yearning to find their winning ways. Yet Rawalpindi will aim to stay undefeated. Good afternoon and welcome once again to the AH Group presents Jazz Super 4G National T20. It is the Super 8 round and it's the second day. Live from the National Bank Stadium, here we are with this encounter, Rawalpindi versus FATA. As always, we've got two games lined up. Later in the evening at 8 o'clock local time, Aptabad will be facing Sialkot the same day. So all excited about the encounters today, and we have Rawalpindi who have won a very hard-fought match the other day, and against them are FATA who've lost their last game to Sialkot. So a winner and a loser will be locking horns with each other. Every single game counts. All the teams in the Super 8 will be playing 7 matches, which means each team plays the other once. Hello and good afternoon. I'm Sikandar Bakht with you, and I've got Salman Butt alongside me. We will be talking about a little bit of yesterday's games and, of course, what we have in store for the day. So let's recap and what happened with Lahore Whites and Lahore Blues. Lahore Blues being more latest, the last evening game, Salman. Thoda sa nahi, balki kafi off color dekhe. They started off well, put Karachi Whites under pressure with the ball, but then maybe allowed them a little more space to score 165 odd. Batting karne aaye, to it seemed like they were just playing some other game. Definitely, I think it has to go down to the top order batting. Lahore ने जिस तरह अपनी innings को approach किया, all right, आपकी एक wicket गिरती है, but stability comes in. वो हमें कहीं नजर नहीं आई. The next two batters, they threw their wickets away. Shot selection मजेदार नहीं थी और options उस time के ऊपर वो ideal नहीं थे. और फिर जिस तरह captain आए, उनसे बड़ी उम्मीद थी. वो एक बहुत अच्छे player हैं, हुसैन तलत. पहली बॉल पे ही took a chance, शायद वो उस प्रेशर को काउंटर अटैक से तोड़ना चाहते थे. He did not succeed, so it all fell off for Lahore, और they got into a position जहाँ पर they could have been terribly down and out. 30 पे 7 खिलाड़ी आउट थे. उसके बाद हमने देखा कि वो थोड़ी सी पार्टनरशिप हुई और 140 तक वो रन्स को ले गए. But I think for them they could have done better in the power play. If you look at Lahore Blues, their squad seems to have some options available, which probably, I don't know what the reason is, they haven't explored. Someone like Umar Siddiq or Junaid, they are not in the 11. Is that also one of the reasons that they're not getting their batting combination right? I don't know what the reason could be. देखिए, I do not know about Umar Siddiq कि उसको क्या problem थी, because वो he's a very fine keeper batter. लेकिन Junaid was injured. वो हमें रात को पता किया था, तो उन्होंने ये बताया था कि Junaid fit नहीं था, इसलिए नहीं खेले. लेकिन Junaid fit नहीं है, नहीं खेले means कि there is something wrong with Umar Siddiq, because number one option तो Umar Siddiq है. So I think the injury list has grown. इनके एक पहले भी keeper थे शावेज इरफान. उनके भी घुटने में प्रॉब्लम हुई. He's been sent back to Lahore. So I think injuries have halted their selection process. उसके अलावा I think the batters, they need to take the responsibility at the top order. लाहौर वाइट्स पे आते हैं, वहाँ भी वही केस, वही सिनारियो देखा कि अगर अहमद शहजाद आउट हो गए तो टीम बाकी जो है, जो कि इतना ज़्यादा लोअर मिडिल ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर टेस्ट नहीं हुआ है, आखिरी 5-6 ओवर्स में यानी 36 गेंदों में उन्होंने 38 ही बनाए जब अहमद शहजाद आउट हुए. Seemed like they were all at sea after he got out. देखिए, again it's all about Ahmed Shahzad if you talk about the other Lahore team. और ऐसे टीमें चलती नहीं हैं. अगर आपने बड़ा टूर्नामेंट जीतना है, other people have to put their hand up और उन्हें भी अपनी performances put up करनी होंगी. एक बंदा, yes, he can play out of the skin, he can give you good starts, अपने runs कर सकता है, 1-2 मैच जिता सकता है. पर tournaments जीतने के लिए पूरी टीम को कुछ ना कुछ करना पड़ता है. I think कि बाकी बैटर्स की तरफ से वो encouragement नहीं मिल रही. अकेले अहमद शहजाद के लिए it is very difficult to make them win all the games. आज के मैच के बारे में बात करते हैं. रावलपिंडी और फाटा का मुकाबला है. रावलपिंडी की अगर जिक्र करें तो अभी हमने ओपनर में भी सुना कि शादाब उनके कप्तान आ गए हैं और साथ में नवाज का एक्सपीरियंस भी, और इन्होंने पिछला मैच बचाया भी है.
कोई ऊपर से 4 विकेट्स गिर गई और इन दोनों ने फिर 180 तक पहुंचा दिया स्कोर. सो ग्रेट इंक्लूजन एंड इन एन इंटरनेशनल प्लेयर और अ कपल ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स कैन मेक अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस. देखिए ऑब्वियसली अब आपके अगर टीम के अंदर शादाब जैसा एक्सपीरियंस प्लेयर आ रहा है या नवाज आ रहा है जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट 7-8 साल से खेल रहे हैं और परफॉर्मर्स रहे हैं इंटरनेशनली डिफरेंट लीग्स का एक्सपीरियंस ला रहे हैं, इट गिव्स अ बिग बूस्ट टू द टीम. एंटायर कंप्लेक्शन टीम का चेंज हो जाता है. तो डेफिनेटली इनके आने से और इफ दे परफॉर्म, पिंडी विल बी अ डिफरेंट साइड. How do you see FATA as a team? Is it more bowler heavy? इनका थोड़ा hot and cold performance रही है. पिछला मैच सियालकोट से हार के आ रहे हैं, but overall टूर्नामेंट में अभी तक अच्छे रहे. देखिए बैटिंग इज समवेयर फाटा जो है ना वो स्ट्रगल कर रही है और वहाँ पर कोई इंकरेजिंग परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही है. T20 में अच्छे पिचेस पे नो मैटर हाउ गुड बॉलिंग यू हैव, यू स्टिल नीड समथिंग ऑन द बोर्ड, समथिंग डिसेंट, जो इन्हें अभी तक मिली नहीं है. और बैटिंग जो है वो इनको लेट डाउन कर रही है. आज के इस मुकाबले को देख कैसा रहे फाटा वर्सेस रावलपिंडी? व्हाट वुड बी द की फॉर दीज टू साइड्स इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग अ ग्रेट फाइट? I think FATA have to be positive with the bat. Their only way is that one way they know how to play is aggressive. ये format भी ऐसे mindset को suit करता है. पिंडी भी बिलाशुबा वैसे ही क्रिकेट खेलती है, लेकिन इनका बेस्ट चांस यही है कि they are big guns with the bat. Let's say खुशदिल और रेहान अफरीदी और a couple of others, they have a good day and then the bowlers back it up. So they need a complete comprehensive performance. कि अगर पिंडी को इन्होंने हराना है, क्योंकि वो साइड जो है उन दो प्लेयर्स के आने से उन्होंने बहुत कुछ गेन किया. चलिए आइए पिच पे एक नजर डालते हैं. पिच कैसा खेलेगी, ये भी एक नई पिच होगी. हर रोज हम एक डिफरेंट स्ट्रिप को यूज करते हैं इस टूर्नामेंट में. शाह फैसल मौजूद है वहां. Day 2 of Super 8 competition here, and we're back at pitch number 7. That's where the last day's game were played in the preliminary round. It is dry and it is straw colored like most of the pitches we've seen on this square. If I show you closely, if you look at it, it's rolled in nicely, but it's slow in nature. Generally, pitches have been slow in nature. Into the pitch is something the bowlers can come up with and make it difficult for the batters. Hitting through the line is also not easy. Slow and low in nature, but good batters were able to score quickly with the new ball and then adapt and choose different scoring areas with the older ball when the pitch gets slower. Still, good contest in anticipation because this is going to remain the same for the entire 40 overs. जितनी पिचेस हमने देखी हैं यूजुअली सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. 7 जो है वो सबसे ज़्यादा साजगार नज़र आई है, लेकिन कभी कभार हम ऐसी बात करते हैं पिचेस की. आई थिंक अगर आपके पास ऐसे प्लेयर्स हों जो पिच को अपने फेवर में एक्सट्रैक्ट कर सकें, उसकी कंडीशंस को यूज़ कर सकें, देन इट बिकम्स मोर. देखिए पिचेस शानदार रही हैं, यस एट टाइम्स ऑन अ स्लोअर साइड, लेकिन हमने ऐसा नहीं देखा कि पिच ने किसी को आउट कर दिया या पिच के ऊपर कोई आसान इवन बॉल हो गया, कोई नीचे रह गया, कोई एग्जैजरेटेड स्पिन या मूवमेंट हो गई इन द एयर ऑफ द सीम, ऐसा कुछ नहीं है. आई थिंक द बैटर्स need to pick and choose. ठीक है, आइए टॉस का टाइम आ गया है. अली यूनुस हैं, दोनों कप्तान हैं, मैच रेफरी हैं. लेट्स जॉइन देम. Yes, we are all set for the toss. It's FATA taking on Rawalpindi. I've got the two captains on my left. Khushdil Shah for FATA. Shadab Khan looking very sharp for Rawalpindi. Mr. Athar Laik, the match referee. And Shadab Khan is going to give it a spin. Heads call. Heads is the call. Pretty far it is one. Athar Laik. Tails it is. Khushdil Shah has lost. Shadab has won the toss. Shadab क्या करेंगे और क्यों? Shadab थोड़ा आगे has lost. Shadab has won the toss. Shadab क्या करेंगे और क्यों? Shadab थोड़ा आगे आते. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हम बॉलिंग करना चाहेंगे क्योंकि पिच का अभी इतना आइडिया नहीं हो रहा, लेकिन जो डेटा बता रहा है वो चेजिंग बता रहा है, तो क्योंकि मैं डेटाबेस चीज़ें मानता हूँ तो इस वजह से बॉलिंग. 26 पे 4 आउट थे आप लास्ट मैच, वहाँ से 32 रन से मैच जीतना काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है पहले मैच में. जी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी रही है. ये क्रिकेट की ब्यूटी है कि किसी स्टेज पे भी आपको रिलैक्स नहीं होने देती, लेकिन काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें रही हैं. कुछ मिस्टेक्स भी हुई हैं, कोशिश करेंगे जो मिस्टेक्स हुई हैं वो दोबारा ना दोहराएं और अच्छी क्रिकेट खेलें. और क्योंकि आजकल की जिस तरह की मॉडर्न क्रिकेट, हम कोशिश करते हैं कि उस चीज़ को अडॉप्ट करें और उस हिसाब से फेलियर भी आते हैं तो फेलियर को एक्सेप्ट भी किया जाए. या कंसर्न की बात करें, सिर्फ 3 विकेट्स हासिल किए आपने पावर प्ले में, क्या ये कंसर्न है रावलपिंडी के लिए?
नहीं, ऐसा कुछ कंसर्न नहीं है, क्योंकि अगर मुझे लगता है कि जिस तरह काशिफ अली ने लास्ट मैच में बॉलिंग की है वो इम्पैक्टफुल बॉलिंग थी, क्योंकि अगर पावर प्ले में आप फ़खर को क्वाइट रखते हो तो इसका मतलब है कि आप अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और अगर फ़खर पावर प्ले में उस तरह का स्टार्ट नहीं दे पाता टीम को तो ओबियसली वो प्रेशर बिल्डअप हो रहा होता है, और उसके बाद आपको जब मिडिल ओवर्स में स्पिनर आते हैं तो वहाँ आपको विकेट मिल सकती है। लेकिन इम्पैक्टफुल बॉलिंग ये नहीं है कि आपने विकेट लेनी है, आपको कंडीशन और सिचुएशन के हिसाब से बॉलिंग। एब्सोल्युटली। आज के कोई टीम चेंजेस? नहीं, सेम टीम है, बाकी चेंजेस तो होंगे क्योंकि जितने ज़्यादा मैचेस है रेगुलर चेंजेस तो बनती है बाद में। गोबल शादाब खान। थैंक यू। खुशदिल शाह बैटिंग कर रहे हैं, पहले टॉस जीते तो क्या इरादे थे? हम भी बॉलिंग कर रहे थे क्योंकि उनकी बैटिंग जो है वो काफ़ी एक्सपीरियंस है T20 में, क्योंकि बेस टीम है जो KP और इसकी पिंडी की टीम है इस टूर्नामेंट में। लेकिन हमारी यही कोशिश थी कि हम पहले बॉलिंग कर लें, लेकिन बदकिस्मती टॉस हार गए और अब पहली बॉल आई, तो बस कोशिश ये है कि इंशाल्लाह हम 150-160 प्लस कर लें तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा टोटल होगा, क्योंकि हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी और एनर्जेटिक है। 150 आपके जहन में? लास्ट मैच में 103 रन्स पर आउट हो गई थी टीम, ये कंसर्न है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए ओवरऑल जितने भी मैचेस नेशनल बैंक ग्राउंड में हुए हैं, जितने भी मैचेस अगर देख लोगे तो लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं, और जो भी टॉस हार जाते हैं वो मैच भी हार जाते हैं। तो हमारी किस्मत में नहीं था कि हम टॉस जीत जाते, लेकिन बस इंशाल्लाह कोशिश करते कि हम बहुत जल्द अच्छा कमबैक कर ले। आज की कोई टीम चेंजेस? 2 चेंजेस है, आसिफ अली की जगह एजाज खेल रहे हैं और एक हमारा ओपनर है उसकी जगह रियाज खेल रहा है। All the best. Thank you. Shah. Right, the news from the toss is that Rawalpindi's captain Shadab Khan has won the toss and they will be bowling first. We're almost very close to the action, so I'll quickly ask Salman about a score that will be good enough and FATA will feel comfortable. I think score तो definitely they need more than 170, लेकिन कैप्टन ने खुद ही पिंडी को फेवरेट बोल दिया तो हम यहाँ पर क्या बोले। So I think उनका mindset प्री मैच ही इस तरह का है, so I think definitely पिंडी फेवरेट है इसमें। So 170 is a score which they might feel safe. जहाँ पे वो फाइट कर सकते हैं। Chali, thank you so much for joining us. Time for us to join the action and over to the commentators. फाटा और रावलपिंडी का मुकाबला है और बड़े अंदाज की परफॉर्मेंस दिखाने का आज पूरा चांस मिलेगा फाटा के ओपनर्स को। गो के उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया कि वो भी पहले बॉलिंग करने के लिए उतरते, लेकिन कंडीशंस बेहतरीन हैं और ख़ास तौर पर इब्तिदा की गेंद की हार्डनेस का फ़ायदा उठाकर इनके ओपनर्स, जो कि बुनियादी तौर पर अपने जहां से आते हैं वहां वैसे ही जारहाना मज़ार रखा जाता है, और उसी को क्या वो आज अपने सुपर 8 के मरहले में पहली शिकस्त खाने के बाद एक बड़े आगाज़ में कन्वर्ट कर पाएंगे। ये तमाम सवालात होंगे और एक एक्शन पैक सीक्वेंस रहने का इम्कान है। नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में सैटरडे की आफ्टरनून है और सुपर सैटरडे के मुकाबले इस वीकेंड में आप तक पहुंचेंगे और उसके साथ साथ देयर विल बी अ ब्लॉकबस्टर संडे एज वेल। समीला जूनियर और इनके साथ रेहान आफरीदी जो कि अपनी इनिंग्स की शुरुआत करेंगे। फाटा को पहले मुकाबले में शिकस्त के बाद बड़ा कमबैक करना पड़ेगा और दूसरी जानिब पूरी कुमक आ चुकी है रावलपिंडी की। 12 मैचेस खेले अब तक सिमिला जूनियर ने, जो कि 150 बना चुके हैं, 26 के एवरेज और स्ट्राइक रेट इनका मुनासिब T20 क्रिकेट के लिए, लेकिन अभी भी करियर के इब्तदाई मरहलात हैं नौजवान बैटर के लिए। और उनके साथ हैं जाने माने कई सीजन्स गुजारे हुए, लेकिन साथ साथ वो भी एक जारहाना मज़ार रखने वाले और शायद ये नाम ही इस मिजाज के लिए काफ़ी है। रेहान आफरीदी 23 मैचेस में उन्होंने भी एक ही 50 बना रखी है, लेकिन दुनिया फतह कर लेने को होगी अगर वो यहाँ पर अच्छी शुरुआत हासिल कर पाते हैं। जबकि दूसरी जाने बॉलिंग करने के लिए जाने माने उछलते कूदते तेज लंबे रनअप के साथ दिलों को धड़काते हुए गेंद करने के लिए आएंगे काशिफ अली, जो कि पिछले सीजन से रावलपिंडी या फिर उनकी रिस्पेक्टिव टीम्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस दिखाते आ रहे हैं। सब कुछ सेट है गेम की शुरुआत के लिए और साथ साथ एक स्लिप के साथ शुरू करेंगे इस मुकाबले को यूनिवर्सिटी रोड एंड से। और कॉम बॉक्स में मेरे साथ आ चुके हैं अली यूनुस, एवर स्मार्ट एवर हैंडसम। थैंक यू अकील समर। काशिफ अली ने बहुत इंप्रेस किया है, पूरे सीजन में ही बहुत शानदार बॉलिंग की है। अभी हालिया में पाकिस्तान कैप में भी बॉलिंग करते हुए नजर आए हम, इन पे भी नजरें रखनी होगी। इंपॉर्टेंट गेम है फाटा के लिए, 103 रन पे आउट हो गए थे लास्ट मैच में। देखना होगा अब ये बैटिंग इनकी कैसे चलती है इस बड़े मैच में बड़े अपोनेंट्स के अगेंस्ट। जोरदार अपील, अक्रॉस खेलने के लिए गए थे, अंपायर के ख्याल के मुताबिक गेंद मिस करती स्टम्प्स को
लेकिन मोमेंट जरूर क्रिएट किया और शायद ये मोमेंट ही थी बैटर की जो कि अंपायर के लिए काफी साबित हुई नॉट आउट देने के लिए। लेकिन राइट अवे मूवमेंट पहली गेंद पर काशिफ अली की। या स्विंग तो इनको हासिल होती है, ये बहुत ही शानदार बॉलर हैं, नया बॉल भी अच्छा करते हैं, पुराना भी अच्छा करते हैं। अर्ली ऑन जैसे आपने कहा स्विंग तो हासिल हुई है। ओ ये बहुत ही करीबी मामला हो सकता था अकील समर, ये बहुत करीबी मामला था। ये लकी रहे बैटर के, ये आउट करार नहीं दिए गए क्योंकि शफल करके बहुत आउटसाइड दी ऑफ स्टंप आए थे और लेग स्टंप हम देख सकते थे। अच्छा स्टार्ट है काशिफ के लिए, स्विंग मिली है। हवा में गई गेंद और वहां पर फील्डर के बाएं जाने से चली जाएगी, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। लेकिन एक और रन मिलेगा जो कि किसी भी तरह से आइडियल नहीं है फाटा के लिए। ये काशिफ अली जिस अंदाज से गेंद करने के लिए आते हैं, फास्ट बॉलिंग का पूरा नमूना पेश करते हैं। इस तरह की पिचेस पे उन्होंने पिछले सीजन से झंडे गाड़े हुए हैं कामयाबी के, और वो जानते हैं किस अंदाज से आपको हार्डली हिट करना है डेक को। यहाँ लेंथ बहुत शानदार है इनकी, एक्शन तो बहुत ही स्मार्ट है। यहाँ पे इंटाइज करते हैं बैटर को कि ड्राइव मारें और इन स्विंग करने की कोशिश। लकी रहे कि बॉल शादाब के हाथ में नहीं गया है। ऐसी ही किस्मत की जरूरत होगी थोड़ी सी फाटा को। बड़ी वाइड है, वही एंगल जो कि इनके आड़े आया जिसके बायस बच निकले थे बैटर। पूरी कुमक आ चुकी है रावलपिंडी के सुपर 8 मरहले के लिए। अली जो कि इनके कप्तान हैं शादाब खान, और उसके साथ साथ जो वापसी हुई है इनकी टीम में नवाज की, उसकी वजह से जिस अंदाज से आपने जिक्र किया था बड़ा अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने पहले मैच में। जी हाँ, लेकिन इस एलबीडब्ल्यू पे नजर रखनी होगी। ये बॉल पहला ही बॉल किया, एंगल के साथ अंदर की तरफ आया, आप लेग स्टंप देख सकते हैं और ये नी रोल पे बॉल लगा है। ये बॉल लेग स्टंप को टच करेगा, ये लगेगा लेग स्टंप पे बॉल। बहुत ही लकी रहे हैं यहाँ पे समीउल्लाह पहले ही बॉल पे। और दूसरी जानिब ये फाटा का अंदाज रहेगा, चाहे जितनी भी गेंद मिस करें या जितनी भी अपील्स हों, उन्होंने जारहाना मिजाज नहीं छोड़ना। और वो जो ऑल और नथिंग वाली सोच है वही लेके शायद फाटा आज भी उतरी है इस बड़े मरहले के मैच में, जब सारी दुनिया देख रही है। शायद अपना वक्त लेना पड़ेगा, खासतौर पर काशिफ के खिलाफ जो कि शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग अपील को सर्वाइव कर चुके हैं। शायद ये बनता नहीं अभी यार रेहान, और ये इन दोनों को शायद लाइसेंस दिया गया कि अर्ली ऑन बड़े स्कोर कीजिए, क्योंकि जब नया बॉल होता है तो बल्ले पे अच्छे तरीके से आता है। वैसे तो पूरा दिन ही अच्छे तरीके से बल्ले पे बॉल आता है। और बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड सेटिंग है, थर्ड का फील्डर सर्कल के अंदर है, मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग रखा हुआ है। बेहतरीन बॉलिंग, काशिफ पेस का पूरा इस्तेमाल करते हैं। किसी फास्ट बॉलर के लिए ये शायद आइडियल बॉडी रखते हैं, लंबे रनअप के साथ आए तो माइंड नहीं करते हैं, और जितनी तेजी के साथ ये गेंद करने के लिए वापसी का सफर अख्तियार करते हैं, वो इनके दिल में एक चाहत और एक लालच मौजूद होती है कि वो इस गेंद पे जो नहीं हासिल कर पाए वो शायद अगली पे हासिल करने के लिए कोशिश करें। और इस अंदाज के फॉर्मेट में आप हमेशा तरोताज़ा रहते हैं। राशिद रियाज जाने माने अंपायर हैं जिनके ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग अपील ऑलरेडी कर चुके हैं, नॉट आउट करार दिया है, अदरवाइज यूजुअली बड़ी अच्छी अंपायरिंग करते हैं। अकील स्विंग मिल रहा है, ये अच्छा साइन है रावलपिंडी के लिए अगर काशिफ को इस तरह स्विंग मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि इनके पास कंट्रोल भी है स्विंग के साथ साथ। और डेफिनेटली ये लास्ट 2 सालों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इम्प्रेसिव हैं। राशिद रियाज का आपने जिक्र किया, दूसरी जानिब है इम्तियाज इकबाल, लेग अंपायर हैं इस वक्त, अभी अच्छे अंपायर हैं। जो पहली अपील हुई बहुत इंटरेस्टिंग थी वो। अब इस जो किस्मत ने साथ दिया है समीउल्लाह और रेहान का, इसको कैपिटलाइज करना होगा। दोनों ही बिग हिटर हैं, अच्छा आगाज देना होगा अपनी टीम को। खूबसूरत डिलीवरी, बाउंस मिला ऑफ द बैक फुट, बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन विकेट कीपर तक गेंद गई। डिजर्व करे थे काशिफ अपने पहले ओवर में विकेट, लेकिन बच निकले ओपनर्स फाटा के 4 बिना किसी नुकसान। यहाँ फाटा की टीम पे अगर नजर डालें, रेहान आफरीदी काफी अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छे ऑलराउंड क्रिकेटर हैं। खुशदिल शाह पे काफी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि बैटिंग में हमें कहीं ना कहीं अकील थोड़ी कमजोरी नजर आती है। सरवर आफरीदी पे भी काफी बड़ी जिम्मेदारी होगी एज अ बैटर। बॉलिंग इनकी अच्छी है, आसिफ आफरीदी, आकिफ जावेद, शाहिद अजीज, इरफान उल्लाह शाह। आज हमने देखा समीन गुल भी मौजूद है लेकिन उनको टीम में शामिल नहीं किया गया। शिनवारी भी इस टीम का हिस्सा है लेकिन उनको भी इस मैच में नहीं खिलाया गया, क्योंकि ये लंबा टूर्नामेंट है, 9 दिन के अंदर अंदर 7 मैचेस खेलने हैं, तो यह ये रोटेशन पॉलिसी पे टीम्स जाएंगी। और ये दूसरी टीम है, ये भी बहुत स्टार स्टडी टीम है, शादाब खान कैप्टन है,
मुबस्सिर है। मोहम्मद नवाज ने अच्छी बैटिंग की है, 79 रन्स लास्ट मैच में बनाए हैं। काशिफ अली, जहांदाद, ये भी तगड़ी टीम है। जमान को पहली गेंद पर चार्ज करने का फैसला किया, स्लिंगिंग इनका एक्शन, और खास तौर पर जो डेथ ओवर्स की इनकी स्पेशलिटी है वो तो किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन जो स्टार्ट मिल चुका है खास तौर पे इस अंदाज के ओपनर्स के खिलाफ, वो शायद दूसरी जानिब रावलपिंडी की टीम को भी ये मौका देगा कि वो भी ऑल या नथिंग की इस पॉलिसी के तहत पीछे पड़े हैं फाटा के, जो कि एक्सप्लॉइट कर सकते हैं विकेट्स को। आप फाटा के मिजाज को शायद चेंज होते हुए नहीं देखेंगे अगर विकेट गिरती भी है, और अभी तो उनके सामने पूरे मराहिल मौजूद हैं। बड़ा क्विकली राइज किया रावलाकोट के जमान ने अपनी इस फॉर्म ऑफ क्रिकेट में, खास तौर पर 72 मैचेस ऑलरेडी खेल लिए हैं, बेहतरीन इनकी एवरेज। अच्छा रन है ये करते रहना होगा, रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक करते रहना होगा, क्योंकि बड़ी साइड है, इनके पास बहुत तगड़ी बॉलिंग है, बैटिंग भी बहुत अच्छी है रावलपिंडी की। तो चैलेंज करने के लिए अकील तो कहीं ना कहीं 170 रन तो बनाने ही होंगे। और जैसे हमने पिछले मैचेस में देखा है कि बल्ले पे बॉल अच्छे तरीके से आता है, चेजिंग बहुत शानदार है। कल पेशावर ने तो कमाल ही कर दिया था, इसीलिए ऐसा एक टारगेट सोचना होगा, 170 तक तो जेहन में रखना होगा कि पहुंचना होगा रावलपिंडी को चैलेंज करने के लिए। और फाइनली उठाकर खेलने के लिए गए, लेकिन वहां पे पूरी कोशिश करने के बावजूद रोल भी किया, गेंद हाथों के नीचे से निकल गई और जख्मों पे नमक पाशी करते हुए चौके के लिए भी रवाना। जहां रेहान अफरीदी जब तक क्रीज पे रहेंगे आपको एक्शन नजर आएगा, क्योंकि ये रुकने वाले नहीं है, ये थमने वाले नहीं है। यासिर थे फील्डर, यूजली अच्छे फील्डरों में इनका शुमार है, आउटफील्डर अच्छे हैं, लेकिन शायद अगर थोड़ा बेहतर टाइम होता तो इनके हाथ में चले जाती, लेकिन बल्ला घूम गया हाथ में, जिसकी वजह से वो टाइमिंग और एलिवेशन हासिल नहीं हुई रेहान अफरीदी को। कोशिश अच्छी थी, और आज तो बाउंड्री भी इक्वल है दोनों साइड्स पे। फिर उठाकर खेला है, फिर हवा में गई है, लेकिन अब तक किस्मत का धनी है कि रॉन्ग शॉट्स खेलने के बावजूद वो बच निकलने में कामयाब रहे हैं। जमान दूसरी जानिब अटैक करने के लिए जाएंगे स्टंप्स को, स्लिंगिंग इनका एक्शन, और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है किसी बॉलर के लिए कि वो टारगेट करता रहे स्टंप्स को हर लम्हा, और जो यॉर्कर करने की कोशिश आमतौर पर इस अंदाज के बॉलर्स करते हैं, और उसमें अब ज़रा सा भी चूकेंगे तो फिर दूसरी जानिब खास तौर पर इस अंदाज का लाइसेंस लेकर अगर बैटर आएंगे तो उनको मौका मिलेगा। समीउल्लाह अब तक खामोश हैं, और गुड लुकिंग स्ट्रोक के साथ उन्होंने भी चौकों के सिलसिले का आगाज किया है। गेंद पर चढ़कर खेले, गैप में खेले, चौके के लिए रवाना। क्या ये थोड़ा छोटा पॉकेट है अगर आप लेंथ की बात करें बाउंड्री की, इसलिए इस चीज़ को ज़्यादा आसानी से इस्तेमाल किए, लेकिन ये क्लासिकल शॉट था, ये किसी भी ग्राउंड में बाउंड्री होती, क्योंकि गैप तलाश किया था। अच्छा बैलेंस दिखाया है समीउल्लाह ने, क्योंकि स्विंग मिल रही है दोनों बॉलर्स को, इसीलिए ग्राउंड शॉट्स पे ज़्यादा इन्हिसार करना होगा इन बैटर्स को। यहाँ पे प्लेसमेंट शानदार। नीचे पे खड़े खड़े बच निकले, एक्शन पैक 2 ओवर मुकम्मल, कराची में 15 रन से नुकसान के फाटा। हाई स्पिरिटेड टीम है रावलपिंडी की अली, इन्होंने अब तक पूरे टूर्नामेंट के दौरान वो वाहिद टीम होने का दर्जा हासिल किया जिसने कोई मैच हारा नहीं है। और फिर उसके बाद जब आपके पास इस अंदाज के खिलाड़ी पहुंच जाते हैं जो कि शादाब और नवाज के कैलिबर के हैं, और जो टॉक ऑफ द टाउन भी हैं आने वाले इस सीजन से पहले, जिसमें ड्राफ्टिंग तो अब लग रहा है कि 24/7 चल रही है। खिलाड़ी आप दिन में सोते हैं कि तो किसी और के लिए होते हैं, जब आपको बाद में उठ के पहुंचने का मौका मिलता है तो पता चलता है किसी और टीम के हो चुके होते हैं। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं, और इन सब में ड्राफ्ट की भी आमद है, सब कुछ इनके जहन में कहीं ना कहीं चल रहा होगा, लेकिन उससे पहले बड़ा ज़रूरी है कि अपने कप्तानी के पोटेंशियल को ज़रा प्रूव कर सकें इस टूर्नामेंट में। अकील, जो सिर्फ एक चीज़ जो हक में नहीं जाती है प्लेयर्स की, आपने जिक्र किया कि क्रिकेट तो बहुत हो रही है, ये स्केड्यूल बहुत टाइट है इनके लिए। अभी जैसे अगर हम बात करें कराची रात को मैच खेल के गए, आज सुबह वाला मैच वो खेल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं फटीग ज़रूर हो जाएंगे प्लेयर्स, और ये बैक टू बैक मैचेस हैं, रोज़ ही 4 मैचेस खेले जाने हैं। तो सिर्फ ये चीज़ है जो इनके फेवर में नहीं जाती है, अदरवाइज क्रिकेट हमें बहुत क्वालिटी देखने को मिली है। अच्छा लगा शादाब को यहाँ पे खेलते देख, नवाज भी खेल रहे हैं आज रावलपिंडी की जानिब से, और भी काफ़ी बड़े प्लेयर्स, शोएब मलिक भी हमें खेलते हुए नजर आए, तो कमिटमेंट तो दिखा रहे हैं प्लेयर्स। दोनों फील्डर मौजूद हैं ऑन साइड पर,
जो मुख्तसर बाउंड्री बताई अली ने, लेकिन सिर्फ एक रन के लिए जा पाएंगे। यस, ये बैक टू बैक क्रिकेट है और उसके लिए जो लोड मैनेजमेंट है वो खास तौर पे बड़ी ज़रूरी बन जाती है, क्योंकि बिहाइंड द सीन आपको सिर्फ ये 3 या 3.5 घंटे की क्रिकेट नहीं खेलनी है। तो उसके लिए वार्म अप, उससे पहले का आपको डिपार्चर, अराइवल और फिर शायद डीब्रीफ, जो कि ख़ास तौर पर हारने वाली टीम के लिए ज़्यादा मुश्किल मराहल होते हैं। और अब तो ये तमाम चीज़ें फैंस के भी सामने आना शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ अपने हौसले को ख़ास तौर पर हारने के बाद मुज्तमा करना अचानक से बड़ा चैलेंज बन जाता है। फाटा की टीम हाईली स्पिरिटेड टीम है, क्वालिफाई करने में कामयाब रही है, अपने पॉइंट को प्रूव करना चाहेगी। और समीउल्लाह ने सीधा खेल दिया शादाब की जानिब, कोई गलती नहीं की वहां पर। शादाब ने स्ट्रेट फॉरवर्ड चांस, बड़ी देर से कोशिश में थे समीउल्लाह सर्कल को क्लियर करने के, लेकिन अब पकड़े गए। यहाँ काशिफ अली की क्वालिटी का हम जिक्र बार बार करते आए हैं, और सबसे अच्छी बात ये बड़े अच्छे एरिया में बॉल करते हैं, और जब आप ऐसे बॉलर को स्विंग मिले तो इनको खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और डोमिनेट करना तो भूल ही जाएं। यहाँ पे डोमिनेट करने की कोशिश, लेकिन ज़्यादा एलिवेशन हासिल नहीं की समीउल्लाह ने, लेकिन प्लान जो था वो क्लियर था इनका कि बड़ी हिट्स के लिए जाना है, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं कर सके दोनों बैटर्स। यहाँ पे देखना होगा, ये अच्छी लैंडिंग है काशिफ अली की जानिब से, एक फास्ट बॉलर के लिए एक परफेक्ट लैंडिंग है, यहाँ पे मैक्सिमम चांस मिलता है। इन स्विंग हुआ, ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन एलिवेशन हासिल नहीं कर पाए, और एक आसान से कैच कप्तान शादाब खान के लिए। वापस जाना होगा समीउल्लाह को 6 रन बनाकर 16 पर 1। नौजवान सलमान टैलेंट से भरपूर, अपने फर्स्ट क्लास डेब्यू पे सेंचुरी स्कोर करने वाले रिप्लेस कर रहे हैं अपने ओपनर को, जो कि कमिट कर रहे थे मुसलसल शॉट्स, और राइटिंग ऑन द वॉल था कि विकेट गिरी कि अब गिरी। अब तक T20 मैचेस में अपने पोटेंशियल को प्रूव करना है नौजवान बैटर ने, इसी सीज़न के साथ शुरुआत की है, लेकिन आज अपने टारगेट को शायद रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि इस बात को तो रियलाइज कर रहे हैं कि रावलपिंडी ना सिर्फ अपने प्लेयर्स की रेपुटेशन, इस टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस और अब तक की कारकर्दगी, सब चीज़ों के लिहाज से एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है, बल्कि एक पेशावर के साथ साथ अगर आप टॉप फेवरेट्स को शुमार करें तो उसमें आ जाएगी, और उसके अलावा अपने टारगेट को आप चेंज कर सकते हैं शायद। या बिल्कुल आपने सही कहा अकील कि ये बहुत तगड़ी टीम है, और इस चीज़ का अंदाज़ा आपको इस चीज़ से हो सकता है कि इनकी बेंच स्ट्रेंथ जो आज के मैच की है वो बहुत तगड़ी है। इवन मेहरान मुमताज़ आज बेंच पे हैं, जिनका शुमार बेहतरीन ऑफ लेफ्ट आर्म स्पिनर में होता है। नासिर नवाज, अब्दुल फसी, ये तीनों प्लेयर ऐसे हैं जो बेंच पे हैं। एक बार फिर एक्शन रिप्ले देखते हैं, ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन एलिवेशन नहीं हासिल कर पाए, और ये अच्छा सेलिब्रेशन स्टाइल है, कॉन्फिडेंस से भरपूर हैं काशिफ अली, क्योंकि स्किल मौजूद है। तो हम बात वही करें कि जब आपकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग हो तो आपके जो प्लेइंग 11 है वो भी परफॉर्म करते हैं। रेहान को जब देखेंगे ये शायद अच्छा नहीं लगेगा काशिफ को, क्योंकि उनके ख्याल के मुताबिक वो पहली ही ओवर में इब्तिदा में आउट कर चुके थे, लेकिन अभी भी उनके पास हौसले मौजूद हैं जिसमें वो प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप काशिफ जैसे बॉलर को इब्तिदा में गुजार लेते हैं तो शायद आपका टॉस के वक्त पे भी शायद सवाल था, या आपने जो बताया कि आप दरमियान के ओवर्स में फिर इंटरेस्टिंग होगा कि आप किस अंदाज से स्पिनर्स को टारगेट करते हैं, क्योंकि ऐसे बॉलर से आप तवक्को करते हैं एक तरफ से जमान और दूसरी तरफ से काशिफ के आपको बैक टू बैक ब्रेक थ्रू दिला के देंगे। सलमान ने सिंगल पे इक्तफा किया, कामयाब ओवर काशिफ का मुकम्मल 19 पे 1। काफी बॉलिंग ऑप्शंस हैं कप्तान शादाब खान के पास, और काफी वैरायटी है अकील। फास्ट बॉलर्स की आपने बात की, काशिफ अली, जमान खान, ये दोनों ऐसे बॉलर हैं जो नया बॉल भी अच्छा करते हैं, पुराना बॉल भी अच्छा करते हैं। इनके साथ मुबस्सिर खान है, ऑफ स्पिनर हैं, मोहम्मद नवाज हैं जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, शादाब हैं जो लेग स्पिनर हैं, और एक जहादाद भी हैं बीच में जो कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं। तो आप जो भी एक क्रिकेट में आपको एक रिक्वायरमेंट होती है वो रावलपिंडी के पास मौजूद है। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें, और उसमें से एक अब आप एक्शन में देखेंगे, नवाज बॉलिंग करने के लिए आएंगे। अब पहली चेंज जमान की जगह, और ऐसा हमने देखा है जमान पहला 1 ओवर करते हैं नए बॉल के साथ, फिर 3 ओवर बाद में करते हैं। तो लकी होता है कैप्टन जिसके पास इतनी वैरायटी हो।
एक बार 5 विकेट्स हासिल कर चुके हैं। 5 for 24 इनका बेस्ट है। 183 विकेट्स से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना टैलेंट और स्किल है नवाज के पास। इस टैलेंट और स्किल सबसे ये भरपूर हैं, लेकिन आज देखना होगा या इस टूर्नामेंट में एक टॉकिंग पॉइंट जरूर रहेगा कि वो कितनी ड्रिफ्ट हासिल कर पाते हैं। स्पिन उनके पास मौजूद थी और जो खास तौर पर हालिया वक्तों में शायद उनको, जो कि अब नए बॉलिंग कोच आ चुके हैं सईद अजमल की सूरत में और उनके साथ काम करके यहाँ पे पहुंचे भी हैं, कि वो किस अंदाज से अपने गेंद को ड्रिफ्ट करने में कामयाब होते हैं और बैट्समैन को चकमा दे सकते हैं। अदरवाइज इस गेंद को खेलने के लिए ऑफ द बैक फुट पूरा गैप क्रिएट कर लिया। क्या खूबसूरत अंदाज से क्रीज का इस्तेमाल किया, हाई बैक लिफ्ट आए और जमीन के साथ लगी चौके के लिए रवाना। यहाँ फोर्स किया इस शॉट को, जबरदस्ती खेला, लेकिन लकी रहे कि बॉल गैप में गया। फील्डर मौजूद था डीप मिड विकेट पे। यही खासियत रही है इस शॉट की। थोड़ा लेंथ इतना पीछे नहीं था, लेकिन डीप गए क्रीज में और फोर्स किया शॉट को दोनों फील्डर्स के दरमियान से 4 रन के लिए। फिर रूम बनाकर खेलने के लिए गए, लेकिन इस मरतबा किस्मत ने उनका साथ दिया है और गेंद चली जाएगी चौके के लिए। तेज आउटफील्ड है, नहीं रुकती। ऐसे शॉट या ऐसे एच के बाद भी गेंद लकी रहे फाटा के बैट्समैन और बैक टू बैक चौके इनके रन्स में। यहाँ पे थोड़ा चूक गए शादाब, आप स्लिप ले सकते थे क्योंकि नवाज बहुत एक्सपीरियंस। यहाँ पे स्लो बॉल किया, स्पिन हासिल किया, जोरदार शॉट एक बार खेलने गए, चकमा दे गए थे नवाज। लेकिन काश वो जो 45 पे फील्डर है उसको स्लिप में रखा होता तो रिजल्ट डिफरेंट होता। कुछ दावे रह जाते हैं अली। यस, लेकिन अच्छी सोच का मुजाहरा किया दूसरे सलमान ने। इस तरह के 2 शॉट्स लगाने के बाद आमतौर पे नौजवान बैटर्स इस सिचुएशन को अपने लिए मजीद कशीद करना चाहते हैं। अगर आप इस वक्त की रन रेट देखते हैं तो 7.5 रन पर ओवर से बेहतर की है। एक खिलाड़ी को गंवाया है और चौके लगाना शुरू कर दिए हैं। काशिफ के खास तौर पर 2 ओवर्स गुजार चुके हैं, तो स्टेज सेट होगा इनके लिए। ज्यादा बॉलें विकेट्स हासिल नहीं किए हैं रावलपिंडी में, लेकिन शादाब के मुताबिक उन्होंने ज्यादा रन्स भी नहीं दिए हैं। इम्पैक्ट बॉलिंग की है। यहाँ पे बॉल लेग स्टैंप डेफिनेटली मिस कर जाता है इस शाउट पे। तो ये चीज जो है, इस सिर्फ जो कमी है वो नए बॉल से विकेट्स लेने की है। आज भी सिर्फ एक ही विकेट हासिल की है। टोटल 3 विकेट्स और आज मिला के 4 विकेट्स हासिल किए नेशनल T20 में रावलपिंडी की साइड में। 4 ओवर्स के बाद 28 पर 1। .28 for 1 in the 5th over. It's a cautious start. After losing a wicket, we usually see the sides just sometimes go into a shell, and FATA, losing their first game in the Super 8, are extra cautious. Discussed this earlier in the day that 170 would be a probable safe zone where FATA could trust their bowling and try to defend it against Islamabad. Islamabad has been a touch fragile in their top order. The last game was saved by the 2 internationals, Shadab and Nawaz, and they took the score to 180. But all is irrelevant. We've got a special guest who's now not a guest anymore. Marina Iqbal has joined us in the Super 8. Marina, all the way from Lahore, you arrived this morning. So happy to see you and so good to have you. Thank you so much, Sikandar, and I'm always happy to be here sharing mic with all you guys.
slashed hard. Didn't get the timing right, but will pick up a single. FATA just needs to recalculate things and reevaluate how their players can take up role, because they are definitely struggling in their batting, and obviously with Rawalpindi they've got really good pace attack. Shadab walks back in. He's a very campaigned player leading the side. So you just need to have smaller targets. Don't think a lot about what they want to be posting. Pulled away. And you can afford to do that when you're in the power play. He's just crossed that boundary at square leg. The fielder was a touch deeper, you'd say, the backward square leg area, so couldn't get to it. So slightly short. This is, Marina, one of the best strips out of the 4-5 that have been used, pitch number 7. That length was easily picked up. There was some force behind the shot. Didn't really time it, but the force actually allowed it to sail over the boundary. It has been a little slower on the side, but on this occasion it didn't look like. That's a good ball. They're asking for it. Good delivery. Just a little bit away movement that actually undone Salman. That's a very brave ball to follow up. Yeah, slight deviation. There's an away movement off the surface there. Miles away from the bat, though. As we mentioned, the Super 8 allows every team to play each other once, so 7 matches for every side. Well, it's not that long a journey. 9th is the day when the semi-finals will be played. While we are watching this match, there are other 2 games happening at UBL as well. .37 for 1 after 5. There it is. Karachi Whites on the top, and Rawalpindi. That's a bit of concern for them. Most wickets in bowling power play, they are at the bottom of just 3 wickets. That can be concerning. When you look at their lineup, they do have the bowlers who can provide breakthroughs, but haven't really been succeed. Zaman Khan into the attack. Usually their first change bowler. Just need to have small targets for FATA. 38 for 1. Salman and Rehan both looking very attacking. Yeah, just a single there. Quite a few faces who've been in the hiding for a while. Zaman, yes, still has featured in a game in the Asia Cup. Musa was a bit similar. Saw him after a long time in action. Salman Irshad features in leagues and comes in the domestic regularly. He's not available anymore. Who's travelled to Abu Dhabi. Soft hands. It's an important national T20, not just for lifting the trophy for your team, but also to present yourself as a probable for the PSL, which is not far away. And then the PSL becomes the next stepping stone if you want to get into the T20 squad with the T20 World Cup lined up in June. Why I would say you might not be going directly into the team from this tournament, because over there in PSL you get a bit of an international exposure, face international bowlers or bowl to international batters. It's in the air and will land between the 2 fielders in the deep. Talk about placement. You get a feeling he might have not been in full control of it, but he took the chance. He was ready for it. You could see him just hanging in the crease, waiting for Zaman to drop a shot and split
those two fielders beautifully. Some appreciation for Zaman Khan. Shadab didn't mind it because it was aerial, not far away from those two, but he got lucky. Oh, gone right there. You know when Zaman is bowling, the Yorkers will come about. And this one has been at the base of off stump. And just at the stroke of the end of the power play, there's another wicket that has fallen. 44 for 2 now. Not much a batter can do about that. He was trying to cut it square to a ball which was so full. You can never get bat behind it with that kind of a shot. And he pays the price. That's what experience can do. Zaman Khan, he dropped it short earlier, went for runs, and then he came back with a perfect Yorker. No worries there. Still no feet movement. Probably he was thinking that it might be another shorter one or a length ball, just trying to go towards the offside, but was undone by a beauty by Zaman Khan. Rehan gone on 15, 44 for 2. Riaz Khan, the new batter in. And that strike rate could do a world of good if it increases to 120. This is early days. Zaman Khan with the last ball of the power play. Short one to welcome the new batter. End of the power play, it is 44 for 2. We just saw that wicket that had fallen, that second last ball of the power play. You see, offered an angled bat. That's the end of the power play. Signal umpire Rashid Riaz makes that signal and makes it official. You just feel that he couldn't offer a dead straight bat behind the line of the ball. He offered an angled bat. He was late on it. And that's because of some sheer accuracy and pace from Zaman. We'll come back to that dismissal. Here's Nawaz with his second over from the University Road end. Have a look at that attempt from the batter where he lost his wicket. Angled bat. Yeah. Hit the turf hard. Couldn't get behind the line. Tough one to deal with, that kind of Yorker at that pace. You remember when Pakistan played almost a decade in Abu Dhabi, Dubai. Nawaz was the pick in T20s with a new ball, finger spinners. The slow, low nature of the pitches, the gripping nature of the pitches helped him a lot. When he came down here, he didn't seem that effective. We still talk about the PSL, completely changed. But here, certain pitches out here do support good, accurate left arm spin or finger spinners. We saw that yesterday also. Irfan Jailer was very accurate, very good. And the kind of experience Nawaz has him surely can impact, especially on the games being played at the National Bank Stadium. He's playing with soft hands. It was a tight call, but safely at home.
Normally the wickets that skid on actually do help Nawaz, and he has the accuracy to manage to change the pace and also the angle by coming wider. So FATA has had a mixed bag in terms of their power play scores in the tournament. 40 for 3, best being 54 for 1, then a 25 for 1 and a 25 for 4. So they've been in a bit of struggle in that power play, trying to get more runs and losing more wickets or getting a 25-25 score. Today they looked good with their 46, but just at the second last ball they lost another wicket, which is fine. You'd say 46 in the power play, 2 wickets down, 8 in hand, you still take it. I agree with the part where you said that go phase-wise now, 7 to 15, build something up. Don't concentrate too much on a particular final score. But here you just feel that you've got to have something as a focus, otherwise you just lose your way very easily. 49 for 2 after 7. You could just sense the urgency from FATA, just trying to force everything on. That was the power play. They were put into back first. Again, just trying to reach out, hit hard. At times, there were some pure shots. This one was the softest middle, straight to Shadab. And again, just trying to hit hard. That's what they have been doing. Targeting the onside, staying sideways. This was a perfect example. He was expecting a shorter ball, just trying to launch everything into the leg side. All are they focusing is on brute force. Haven't seen some well-timed shots from them. Just trying to dominate, trying to create something different and give a message to Rawalpindi that they will dominate. Straight away starts with the wrong one. Shadab, the captain of Rawalpindi. How many times you see a leg spinner starting his spell with a googly? Down the wicket, split it in the air, should be out, should be, oh, just crosses, just tips over the rope. For a moment I thought the fielder at long off was up there with a chance. Yeah, Heather Ali was trying to keep his eyes on the ball. He was trying to settle down, but just few inches away. Wasn't good timing, just again sliced it over. Even Shadab thought that he got his man. That's good cricket. Running hard for 2. That's what is required. Yes, you can go for the big shots, but these singles, these doubles are very important. Try to inculcate that more often in your innings. It's a good place and zone Shadab would be right now, having a very testing World Cup. He can get back to the basics, use this as a platform, try to get some wickets out here before he enters the PSL, or so to speak, before that, the New Zealand tour, if he's part of it. And that added responsibility of being the captain of his side, Rawalpindi, will just feel that he's got more control. He can probably use himself the way he likes. And he has had a good outing with the bat in the previous game, as we mentioned. Well, 10 of the over is 59 for 2.
जल्दी आओ. Back up, guys, back up. Come on, lads, come on, lads. 60 for 2. Very even contest so far. Salman has batted well. Just a hint of turn for Nawaz, and he had to bowl really slow to get that kind of turn. What's your assessment of the wicket so far, Marina? I think there's not many demon in these surfaces. Probably some of them were on a slower side, but I think this is a very good surface. You can see some really good time shot. No variable bounce there. Spinners, yes, as you mentioned, they have to bowl slower through the air to get some purchase. But overall, I think these surfaces are definitely backing the batters. Certainly, you got to have a method to get runs on these pitches. At times, with the slightly older ball in the middle phase, you can't hit through the line. It's dry and abrasive. Into the pitch could be a good idea with the older ball. Also, we've seen reverse because of the nature of the pitches and the square. Like I said, it's not, like Marina said rather, that it's not terribly bad for batting. If you know your method and you know your scoring areas, you can adapt to the pace of the pitch, and then you can capitalize, get runs. So it's made for good contest. We've had middle of the range scores, 160, 170, 150, and teams have been able to fight on those scores. Looking for 2, but was turned down. I think it's more about the implementation by the batters as well. Again, even today we've seen that the ball wasn't doing much. Yes, Kashyap was very disciplined. He did get some movement. Zaman did get some movement. But again, the implementation and the shot selection is a big question mark. 10 singles of the last 2 overs of Nawaz. 9 gone, 64 for 2. You can sense that urgency. I don't know what it is all about by Salman and Riaz, but since FATA came into bat, I don't know what the urgency is all about, because from ball 1, they wanted to dominate. They're coming down the track, at times clueless of what shots they want to play, which bowler they want to target. So they are right now all over the place. You know, in these games, we've seen this is a critical part. Over number 7 to 15, we've seen a lot of teams lose their way. Like I said, batting becomes harder with the slightly older ball against the slower paced bowlers. So they're probably looking to set a platform, but they would not want to lose wickets in clusters here. This has gone big. Fielder's lining it up and will take it. Umar Amin never in doubt against that high ball. And Shadab strikes. Riaz goes. First delivery of the over, and he wanted to go big. That's what I'm talking about. You need to pick your bowlers. You need to pick the line and length. Seems like a clueless shot. Just wanted to clear the boundary. Ended up giving an easy catch to Umar Amin. Another blow for FATA. 3 down now. We'll do the customary front foot check. There is no issues there. Shadab breaking through. That wicket will do very well for his confidence. Umar Amin, one of the very best fielders in Pakistan. And Riaz goes for 10, 64 for 3. Khushdil Shah, a lot depends on the skipper. This is very, very crucial stage of the game. From here to over number 15. What
kind of plans FATA will have, because we've seen they scored 10 singles of Nawaz's last 2 overs, 10 singles out of 12 deliveries. Probably that's why Riaz felt the need to clear the fence. He's gone, but Khushdil, look at that record, 2,500 runs, that average of 27, strike rate 134. He's also got 100 batting in middle order. That's quite a feat. Shadab looked very intense in the warm-ups. He was really up for this competition. And it's really good to see him back in the domestic cricket after a while. Probably, I think it was a little fuller. Couldn't really get the distance. He got the elevation, but was of no use. Shadab, he's really keen to give time to domestic cricket. Like I said, it's been after a while, a long time coming. Because his experience is invaluable for these Pindi boys, and also after a dismal World Cup, he felt the need to come back and just go back to the basics. Nice loop and flight. And also, he indicated that he's very keen on playing first-class cricket. The President Cup, the departmental tournament that is going to start after this tournament. He was upbeat for that too. Missed out. Big chance here. Dropped shot, Shadab, and he's laughing because he knows that. And Khushdil Shah went through the shot quite early. No run. Good one from Shadab. Just 2 runs and a wicket. FATA at the halfway stage, 66 for 3. It and over will get them to 146. 10 and over, ideally they would want to get up to 166 to challenge very strong Pindi batting lineup. But for that to happen, Khushdil Shah will have to play a blinder. Just the 10 overs left. He needs to play a blinder, but not blindly, because a lot relies on him. It's a decent total so far after 10 overs, 66. Don't worry about the wickets. They've still got some batting left. Khushdil Shah. They've got Sarwar Afridi as well. Asif Afridi, Aqib Javed can bat. It's just about the moments. Pick your moments. Also heard a lot about Aizaz Khan. We'll have to see. But Jahandad has had a very good season. Using the pace, chases on. A tumbling effort. Zaman Khan has done some damage to himself as well. The way he grabbed at his hamstring, that is not good sign, and I don't think if he's able to save the boundary, that will be checked later. But that fall really looked nasty. A tad late reaction from Zaman Khan. He did sprint towards his right, managed to pull the ball back, but again, I think the moment he stood up again to grab the ball, that's where he did the damage to his hamstring. He's not happy, he's in a lot of pain. The first stop, when he stopped the ball, he overrun it. There you go. After that dive, when he got up, look, there is a little slip. And there you go. That is where he felt immediately at his right groin. Umpire has called it 4. Good thing he's up on his feet. Oh, you don't want to do that, Zaman Khan. He's a very, very valuable member, not just of this Rawalpindi team, but in the bigger scheme of things as well. He's actually evolved a lot. He's a bowler, as a player as well. He's staying on. That's a good sign.
And the ball will follow him again. Oh, that was nasty. And the ball bounced over his body. It's so funny. It happens so many times when you're not feeling well. The ball seems to follow you. On that occasion, Zaman was left flat on the ground and the ball went for a boundary. It was a straightforward ball, but he slipped and nearly missed his face. That's not a good thing. Obviously, as a fast bowler, you think a lot about your lower body, your hands, your quads, but again, you need to concentrate on the ball coming to you. Slow delivery into the stumps and played on the onside. Probably Jahandad was very bowling another angular delivery, angling outside the off stump. He wanted to go to Zaman because he's still recovering. That's 2 balls in a row, hardly ever happens. But good job is that he's staying on and he's up on his feet. Already good over for FATA, 9 off it. Talking about Jahandad, he's shown his prowess in this season in a longer format and in the shorter format as well. He's shown ability to strike big as well. Good bustling action as well. Looks busy in his run-up. These little things that he could work on as the time progresses, his career progresses. But solid character and a very talented cricketer. Good call. Khushtil realized immediately that that ball was in the gap and the fielder was at long on, so easy single in the end. The kind of start that you want after the halfway stage, 66 and looking to get at least 100 runs in the last 10. They've got to 10 in this over with a little bit of luck from the fielder. But that's the kind of platform FATA slowly will like to build up until over number 15. Beautifully played. He got onto it in a flash, just slightly back of a length, not a real long hop, but he picked the length so quickly and deposits it. That is a boundary to finish off over number 11, 80 for 3. Again, the length actually, and probably the line also allowed him to play freely. Third boundary of the over. That was an expensive over from Jahandad, but FATA wouldn't mind it. They are picking their spots nicely. A bit of a chaotic over for Jahandad. He started off with the deliveries angling across the right hander outside the off stump and finished the one which was angling down the leg side. Erratic line and length there from Jahandad, but Mubassir is in, an experienced cricketer. Just 11 wickets in this format though. Salman has really batted beautifully. 49 of just 28 deliveries. Looking to bring up his maiden 50 in this format. And what a time to get it against a big opposition on a big stage. That strike rate is very impressive. No run. Very nice, very You nice. have to Boy, wait. very nice. Shadab Boys, got come in on, the boys, way. Come on, boys. Jaan marte raho, jaan marte raho. Pressure in, guys. Oh, yes. Quicker delivery. It looks like a variation from Mubassir. It did swing away in the air a little bit from the right hander. 2 quicker ones. First was right onto the stumps and then just away from him. There you go. 50 for Salman, coming back for the second run. Really good running between the wickets. But this has been a terrific knock from the youngster on a big stage. He's really given his side the platform where they can build into a good total
Well played, Salman. He can enjoy his first 50 of this national T20. Took his time, was very ambitious, but never let any free delivery go away without scoring. Crucial time there in the innings for Salman. He should not worry about that personal milestone now that he's achieved it. He's got himself in a hole in this over, quite a few dots. In the middle, it's important. This time it went quickly to Jahandad, so there'll be only a single. Good over from Mubassir, just 4 of it, 12 gone, 84 for 3. He played well, really well. Anything provided shot, he went after it, picked up the line and length beautifully. A lot of wrist involved and good running as well. All this complemented towards his 50. First for the season. Lefty boys. Slog, and will earn him the reward of a maximum. A bit of that would be required just to put a little bit of pressure on the bowlers who are trying to control the proceedings at the moment. Takes the scores into the 90s now in the 13th over. Yeah, FATA needs it. A big one from Khoshdil. That was in his zone, in his slot. Left arm spinner against a left-hand batter. Look at that technique, clearing his front leg. And that bat swing and the placement, perfect. Good start by Khoshdil. The platform is fine. You'd still say closing up to 100 and got 7 overs to go after this, and you've got 7 wickets in hand. You can explore that long handle in the last 5. It will be required to get to that 170 mark. It will take some beating. That's again a good shot. Placement is good and it gets a 4. You get a feeling that the fielder at square leg could have done better than that. A little slow in taking off to chase that ball, but nevertheless, FATA would take it. Absolutely. This over turning into a good one. A 6 and now a boundary. Not exactly very intended, but he'll take it, as you said. Lucky for him that it was placed right between the two fielders. 12 runs already of the over. You got to give credit to Salman, the way he has played. They lost early wickets, but it was this man who steadied the ship and now looking to accelerate and get a big one. He should get one. That will give them a lot of confidence after being bowled out on 103 in the last game, FATA. Yeah, full toss. Gets away with it, but concedes a couple. It's a good over, this. 14 of it, 98 for 3. Tapalti moment. Nice winter afternoon and a nice hot cup of tea. With friends, a good game of cricket and a Super 8. Chalo boys, body language boys, body language. Chalo boys, jaldi se, bas Mary bas. Mubassir will come round the wicket into his second over. Good first one, conceded 4.
That turn takes it outside edge and he's gone through the keeper. How did that happen? He's gone for overthrows. Would love to see that again. That brings the 100 up for FATA. But that was very ordinary from the keeper, the man with the gloves. Nobody backing up. Yeah, this is what pressure can do to you. They put pressure by running Kashif through it. And Raza, he just probably was assuming that the ball will hit the stumps. But that's not how you should be doing. You should be behind the stumps. Raza, the wicketkeeper, giving away 4 extra runs. Kashif had to throw at it. That's what pressure does. Well, I understand the keeper wants the ball to hit the stumps on the full, but what about the backing up? The fielder at long on was just watching the ball go by. He was so late in his movement towards the left. It's very ordinary cricket there on that occasion. Chips it for a single now. Khushdil will have to play that captain's role with the bat today, because he is their power pinch hitter. If he stays till the end, they'll probably fancy that 170. Yeah, ordinary 15-20 minutes for Rawalpindi. We saw some poor bowling, some poor fielding, some poor backing up also. They just, it seems like they're just letting this go off. Credit has to be given to Salman and Khushdil. Remember, these are the 2 batters who've got the maximum runs for FATA. Couple of 50s to their name. Again, good running. Very good running. Putting pressure on the fielding side. And if they do stay on, they're well on their way to get to that 170 mark. 9 of the over with 5 overthrows. So now last ball. It's got to finish well. Yeah, it's a good ball. Almost stops that single shut up. With that, Khushdil will keep strike. 14 overs bowled, 108 for 3. Yeah, wickets were falling around him, but he stood stand. The way he batted, I think it was a much needed inning from Salman Khan. For FATA, the way he played all around the ground, he was brave enough to play his shots, pull shots, cut shots, every shot included in that inning. And more importantly, doing it for the team. Great inning for him. Come on lads, come on lads. Shabash, shabash, shabash. One bounce too long off for just a single. So it's a good thing that there are no dot balls anymore. 24 runs in the last 2 overs. They're keeping strike rotation, getting those odd boundaries every over. That's keeping them in the game. The run rate is 7.69, so that can always be pushed to a higher number with wickets in hand. Shadab has changed ends. Now he's bowling from the University Road end. I like how Khushdil is pacing this inning. He's not in much hurry. They're getting easy runs from Rawalpindi side. It's important that he stays till the end. Probably Salman is the one who should look to go big. He's all set. 41 deliveries he's faced. Yes, boys, bowling steady, bhai. The intent is pretty clear by Salman that he's going to go after the spinners. And from where he's batting or Shadab is bowling this end, the mid-wicket boundary or the cow corner is a shorter boundary in comparison to the other one. So he will be fancying that zone. Bowling steady, bhai, bowling. ठीक है, ठीक है. That should be a boundary. He's beaten backward point.
Like we said, every over is offering boundaries. That wasn't a very good ball. Gave him width, a ball that is spinning away, allowed him to extend his arms and push it through back foot point. Absolutely. Poor bowling by Shadab. Outside the off stump, width given. And he's not going to miss out. He's on 68 at the moment. Look at that, just placement perfect. There was a fielder deep. Oh, this should be out. Should be out. Two fielders, two fielders. Oh, that's all over them. A 6 for Salman. There were 3 of them rather, not 2. Haider Ali and Mubassar. 14 runs coming off this over. 15 gone, 122 for 3. Was there to be hit? There to be hit. But that's what I thought, that he's going to go after the bowling. And he did. Choosing that cow corner, this shorter boundary. That's 10 and over will get them to 172. They're already at 8.1. The good part is that the big overs, the last one had a boundary and a maximum, 14 runs coming off it. So you talk about 24 in the previous 2. That makes it 38 runs in 3 overs. Last 5 overs, the platform is set. 2 batters well set. But they're up against Zaman Khan, who we know what he's capable of doing at the death. He's very good with the change of pace, those variations, the Yorkers, slow bouncers. He's got everything. Yep, it starts off with a slower bouncer. That's what he's capable of, Zaman Khan. It won't be easy for these two, because he's got that experience behind him. Also played lots of cricket in the last couple of years. Good cricket also. He's the last over specialist, he's known to be. Slight misfield and quickly Khushdil comes in. That should be close. They're asking the question. We might go upstairs. We touch and go. Captain Shadab just throws an underarm towards the non-strikers. In a matter of no time, this could change things for FATA, because the momentum is with FATA at the moment. It was a little slow to decide on that single. And they picked Shadab for that. He's one of those gun fielders. Let's find out with our third umpire what the situation is. Huge moment. Huge moment. Gone. Gone, yes. Shadab has done it for his team. They needed to break this partnership, and he did it with some excellent fielding. Great movement, great start, and a perfect throw to get rid of the mighty Khushdil Shah. Has to go back now. Out is the signal, rightly so. Yeah, if you can't get them through the bowlers, then one good fielding effort can change things in your favor. And this time the captain did it. 19 of 16 for Khushdil. It's a big fish for them. 122 for 4 is now on the board in the 16th. Sarwar Afridi, 296, but keep your eyes on the strike rate, 144. We know he's capable, what he's capable of. He can hit big and very big. We saw that in the last year's National T20, the way he played. And if he stays too, they can still get to 170, which will be the par score, maybe.
That's the run out. Underarm. And the ball hits when he is around a couple of inches short of his ground. Good bowling. Mixing it up, Zaman Khan. Again, a slow bouncer outside the off stump. It's never easy with this slingy action. And he's got that, he's mastered this art. The control that he has, Zaman Khan. And the Yorkers too. He's very good with him. That's it, that's what I'm referring to. A slower bouncer, follow up with a Yorker. That's what he's capable of. Now is the time. After this over, 4 will be left, where FATA will need to rely more on Salman, because he's got his eye in. Try to get the big score going. That's a good over. That's a very good over. After all those big overs, he's produced something which is given 1 run and a run out. 123 for 4. Okay. मैसिव कमबैक रावलपिंडी का। अपनी स्लॉपी फील्ड को उन्होंने रिकवर करवाया उस शानदार रनआउट के जरिए जो कि कप्तान ने क्रिएट किया, और ये बड़ा मोमेंट था इस गेम में। और अभी भी एक ओवर मौजूद है काशिफ और जमान के पास, जो कि शादाब को भला मालूम होगा। गो के इब्तिदा में लग रहा था कि काशिफ को शायद ओवर बॉल कर दिया हो। 5.33 की इकॉनमी के साथ उन्होंने रन्स भी दिए, लेकिन एक विकेट वो हासिल कर पाए हैं। और फ्लिक किया, पूरा हाथ घुमा के पंखे की तरह हाथ घुमा, और गेंद बाउंस करने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। शिद्दत से जरूरत थी इस चौके की, फाटा को हासिल किया। ये खासियत रही है इनकी, सलमान की। आज जितना भी कलाइयों का इस्तेमाल किया बहुत शानदार तरीके से किया है। वेट करते हैं, गेंद को आने देते हैं, एट टाइम्स रीच आउट भी करते हैं, और बहुत ही महारत के साथ ये 4 रन इन्होंने हासिल किए। जहांदाद पिछले ओवर में भी काफी एक्सपेंसिव रहे थे, और अभी आगाज भी अच्छा नहीं रहा। देखना ही होगा कि ये 6 रन के लिए गया है या फिर ये चौका है। बाउंस कर गया पहले, 4 रन होंगे। ओवर की इब्तिदा में ये बाउंड्री हासिल हो गई है, जो कि हम देखेंगे कि कंफर्म करेंगे अंपायर चौके की सूरत में, और इससे बेहतर आगाज हो नहीं सकता था। पिछला शानदार ओवर किया जबान ने, सिर्फ 1 रन दिया, फील्डिंग पे लिव अप किया, लेकिन अब चूंकि इब्तिदा में हासिल हो सका चौका, 8 रन पर ओवर अप्रोच कर रही है रन रेट। और एक मरतबा फिर रिपीट करने की कोशिश की है, लेकिन अब वो गैप तलाश नहीं कर सके। मुबस्सिर फॉरवर्ड आए फील्ड करने के लिए, तो बड़ी अच्छी कोशिश है मरीना। अब तक ये फाटा की जानिब से अपने वेट के अबव उन्होंने पंच करने की कोशिश की है, और यहाँ पे जो टारगेट अब लग रहा है अगर इसी अंदाज से चलते रहे 160 का, तो वो जो तवक्कात का दबाव रावलपिंडी के लिए आसान नहीं होने वाला है टोटल, जितना भी आप अपने फायर पावर पर रिलाई करें तब भी। बिल्कुल 80 रन की जारहाना इनिंग्स के लिए सलमान ने सरवर एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि इम्पैक्ट डाल सकते हैं आखिरी ओवर्स में। थोड़ा सा रावलपिंडी को रिकैलकुलेट करना पड़ेगा किन एरियाज में बॉल करनी है, किन एरियाज में नहीं, क्योंकि जहांदाद अंदर गेंद ला रहे हैं और बासानी इसको खेल पा रहे हैं सलमान। स्लो वन करने की कोशिश और आउट हो जाएंगे। दाएं जानिब गिरते हुए जमान ने इस मर्तबा आसानी के साथ कैच को हासिल किया। सर्वर बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। बैक टू बैक विकेट्स गिरी फाटा की, और अचानक से फिर पड़ा हुआ आ गया इनकी इनिंग्स में। अभी हम बात कर रहे थे कि कितने अहम हो सकते हैं सर्वर इस इनिंग्स में, क्योंकि आखिरी के ओवर्स चल रहे हैं और एक बड़ा टोटल पोस्ट करने में इनका बहुत बड़ा हाथ हो सकता था, लेकिन कामयाबी हासिल की। जहांदाद ने थोड़ा तेज और जोर से शॉट मारने चले गए थे, यहाँ पे कोई परेशानी का बाइस नहीं है। हैंड डिलीवरी थी, अपनी अगली लेग क्लियर की थी, ऑन साइड पे खेलना चाह रहे थे,
आज पीछा नहीं छोड़ा गेंद ने जमान खान का, लेकिन अच्छा शानदार कैच और बड़ा झटका फाटा को। 128 पे 5 आउट। सरवर अफरीदी बगैर किसी रन के वापस डग आउट। शाहिद अजीज आने वाले बैटर हैं और अब अचानक से सलमान पे जिम्मेदारी आन पड़ी है। ये जब इब्तिदा में बैटिंग कर रहे थे तो उनको दूसरे एंड से सपोर्ट भी हासिल थी, लेकिन अब एक के बाद एक करके विकेट्स गिरी हैं। कमाल की इनिंग्स खेली है सलमान का, यह अव्वलीन सीजन है और उसमें अगर आप इस अंदाज से रावलपिंडी के स्टार स्टडेड टाइम के खिलाफ, और हम बार बार बात कर रहे हैं कि इस क्रूशल मौके पर अपने इनिंग्स को खेल देते हैं जहाँ पर दुनिया आगे समो लेने को हो, तो फिर कॉन्फिडेंस भी बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। लेकिन इस फाटा के लिए फिनिशिंग टचेस रिक्वायर्ड हैं, क्या शाहिद कर पाएंगे? ये बेहतर होगा फाटा के लिए अगर रन मुकम्मल करते हैं, लेकिन एक मरतबा फिर जाकर फर्नीचर को हिट करने की कोशिश की है, कामयाब भी हुए लेकिन अब मुकम्मल कर जाएंगे। अचानक से एक स्प्रिंग आ गया स्टेप में रावलपिंडी के। मदीना, रावलपिंडी ने शायद थोड़ा सा अंडररेट किया था फाटा को, लेकिन जिस तरीके से ये इनिंग्स चल रही है, स्पेशली 80 रन की इनिंग सलमान की जानिब से, रोटेशन हो रही है स्ट्राइक की, अच्छी बाउंड्रीज मिलती जा रही हैं। और एक बार ये देखें फिर रिकिशे किया था जहांदाद के हाथ से, और ये खतरे से खाली नहीं होता चैलेंज करना शायद आपको, लेकिन इस बार और ये मोमेंट्स क्रिएट करते हैं आपको एक अचानक से लाइवली स्पेस देने के लिए गेम में। आपकी टीम दीवार के साथ लगी हो, अगर वो खुशदिल शाह वहाँ पर एक 25-30 की इनिंग्स खेल पाते हैं तो फिर बड़ी मुश्किल हो जानी थी रावलपिंडी के लिए। लेकिन आपको साथ साथ दूसरे खिलाड़ियों को इंस्पायर करने का मौका भी मिलता है। सीनियर खिलाड़ी हैं, कप्तान हैं शादाब, और हमेशा से एक अच्छे फील्डर कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन ये साथ साथ दीगर खिलाड़ियों को जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की मिसाल है वो देने का मौका मिलेगा। शाहिद ने पूरा एग्रेशन दिखाने की कोशिश की है, किस्मत ने उनका साथ दिया, पहला चौका हासिल किया और एक अच्छा ओवर खत्म करने की कोशिश में जाते जाते एक और चौका देगा जहांदाद। कदमों का इस्तेमाल किया था और ये अब इन्हें करना पड़ेगा क्योंकि आखिरी के 3 ओवर्स हैं। चार्ज किया था, जानते थे कि जहांदाद थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेंथ जरूर चेंज की थी लेकिन रूम थोड़ा सा मिल गया था। और जब कहते हैं कि अगर आपने अटैक करना है तो तेज फ्लैश करें बल्ले को, और उसी के नतीजे में 4 रन हासिल किए। 134। एक ओवर बाकी मौजूद है काशिफ अली और जमान के पास। कराची में क्रिकेट अपने अरूज पे, और इसके साथ साथ जो आपको तरोताजगी चाहिए वो टपाल टी के जरिए से भी हासिल हो रही है। और बड़ी जगह मौजूद है यहाँ नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में, जहाँ पर एक्शन पैक मुकाबले हैं। स्टार स्टडेड सियालकोट की टीम आने वाले गेम में मुकाबला करेगी एबटाबाद के खिलाफ, जिसमें फेमसली फखर जमान फीचर कर रहे हैं। शादाब अपने आखिरी ओवर के लिए, और इस मरतबा रॉन्ग वन को रीड करने में कामयाब ना हो सके सलमान, जो कि मोमेंट क्रिएट करना चाहते थे। शादाब के खिलाफ ऑलरेडी 2 छक्के लगा चुके हैं, लेकिन अच्छा कमबैक कप्तान का। ठीक है, ज्यादा इंतजार करते हैं रॉन्ग वंस पे शादाब, रीड करना बहुत जरूरी होता है किसी भी बैटर के लिए, लेग स्पिनर को स्पेशली, वो जो वेरिएशन पेस की वेरिएशन के साथ लेग स्पिन और गुगली करते हैं। बहुत महारत रखते हैं शादाब गुगली में। और इस गेंद के नीचे आकर शाहिद ने पिछले चौके के बाद उस पर लिव अप करने के लिए उससे बड़ा कॉन्फिडेंट शॉट लगाया। पूरी जेट फ्यूल और फायर पावर मौजूद थी। बिग बूमिंग सिक्स शाहिद का। ऐसी जा रहे आना इनिंग्स और बैटिंग की तवक्को की जा सकती है और करनी भी चाहिए। बेस अच्छी बना ली थी और उनके जोन में भी ये गेंद आ गया था। आड़े हाथों लिया इसको और थोड़े एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं शादाब। रिवर्स खेलने के लिए गए हैं खतरनाक अंदाज से, लेकिन अपने इनर फील्ड को अबूर कर लिया है और गेंद चली जाएगी एक और बाउंड्री के लिए। क्या बैटिंग की है शाहिद ने, और कप्तान को दीवार के साथ लगा दिया है। शादाब सोच रहे होंगे कि अगर उनको कुछ भी ऑफर हो तो वे इस ओवर को यहीं पे छोड़ दें। बैक टू बैक छक्के फाटा के।
रावलपिंडी के लिए सबसे महंगे बॉलर साबित हो रहे हैं और ये इम्प्रोवाइजेशन एट इट बेस्ट, सेटल नहीं होने दे रहे शायद आपको। कमाल महारत शॉट खेली। 6 बॉलर आजमाए अब तक रावलपिंडी ने कप्तान समेत, और इन्होंने शायद आकर अपने आप को कमबैक करवाने की कोशिश की थी, लेकिन अब ये ऑलरेडी 40 रन दे चुके हैं मरीना, और एक कम 39 रन इन्होंने दे दिए, विकेट हासिल की है। हालांकि इनके पास ऑप्शन मौजूद थे, मुबस्सिर ने 2 ओवर में 14 रन दिए थे, इसके साथ साथ शायद जहांदाद का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते थे जो उन्होंने कैलकुलेट किया, लेकिन अब जाकर उनका कोटा मुकम्मल होगा। 2 बड़े ओवर आना बाकी। फाटा बैक इन एक्शन, 148 पे 5। कराची और पेशावर का मुकाबला था, 2 बड़ी टीम्स का जो कि कल अपने मुकाबले जीतने में कामयाब रही थी, और वहां पे पेशावर को अपनी दूसरी फतह हासिल करने का मौका मिला है। यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मैच खेला गया जहां पर कराची ने सिर्फ टॉस जीता, बॉलिंग करने का फैसला किया, और उसके जवाब में पेशावर ने 186 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। आदिल अमीन ने 75 नॉट आउट की शानदार इनिंग्स खेली। इफ्तिखार अहमद ने 72 नॉट आउट बनाकर वहां पर आग लगा दी थी यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। और कराची वाइट्स के टॉप स्कोरर मरीना इंटरेस्टिंगली सोहेल खान है, जिन्होंने 34 रन बनाकर मार्जिन को कम किया, और जो कल के शाम में कमबैक करने में कामयाब रही थी लाहौर ब्लूज की टीम, उसके जरिए से ये अचानक से नीचे चली जाएगी, क्योंकि वहां पर बड़े मार्जिन से विक्ट्री हासिल ना कर सके और यहाँ बड़े मार्जिन से डिफीट ले गए। ऊंचा खेलने के लिए गए, आउट होने का खदशा, और कैच मुकम्मल कर लेंगे। शाहिद जो कि एक और छक्का लगाना चाहते थे, लेकिन ये बाउंस बहुत ज्यादा साबित हुआ। काशिफ अली का अच्छा कैच। बाउंस और पेस जमान खान की, जिसकी वजह से एग्जीक्यूशन अच्छी कर नहीं पाए। तैयार थे शॉर्ट पिच डिलीवरी को फेस करने के लिए, खेले भी, लेकिन पेस और एक्स्ट्रा बाउंस ने इनको मात दी। और अच्छी इनिंग्स थी, 6 गेंदों पे 18 रन बनाए थे। जमान खान नॉर्मली नो बॉल नहीं करते, और यहाँ पे भी कोई मुश्किल इनको यहाँ पेश नहीं आएगी। तो एक बड़ा झटका, एक अच्छा कैमियो खेल के डगआउट में वापस जाएंगे। इस फ्रस्ट्रेटेड है शाहिद, लेकिन शायद अपना काम कर गए। 6 गेंदों पर 18 रन, जो कि इस गेम के कॉन्टेक्स्ट में माने रखेंगे। दूसरी तरफ से एक सब प्लॉट चल रहा है मरीना कि 82 रन बनाकर अपना करियर बेस्ट अपने अवलीन सीजन में ऑलरेडी बनाया सलमान खान ने। क्या वो अपनी सेंचुरी को मुकम्मल कर सकते हैं? काफ़ी देर से स्ट्राइक से दूरी पे हैं, और माइंड नहीं कर रहा होगा फाटा उस वक्त जब शायद छक्के लगा रहे थे, लेकिन अब एजाज आए बैटिंग करने के लिए। चार मैचेस में 9 रन बना पाए हैं, लेकिन आमतौर पर इस पोजीशन के बैटर आपको लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर सलमान ने क्या उनको तलकीन की है कि वो खुद आना चाहेंगे स्ट्राइक पे, या फिर वो हर गेंद के खिलाफ चार्ज करें। पूरा टेक ऑफ करने के पोजीशन में थे, लेकिन लगता है कि तैयार नहीं थे। एजाज इस बड़े मुकाबले के लिए, और जमान भी दूसरी जानिब हंसते मुस्कुराते, बेबी फेस और जोशीले भी हैं, लेकिन वापस जाएंगे बॉल करने के लिए। तो जबरदस्त पेस में बीट किया, अपनी जगह पे खड़े खड़े चार्ज करने की कोशिश की थी, और अचानक से कैचिंग भी अच्छी हो गई, जिसकी जरूरत भी रावलपिंडी को। शानदार गेंद सम्स की लाइन में आती हुई, बैक टू बैक विकेट्स हासिल की हैं जमान का फातिहाना अंदाज ऑन हैट्रिक इन कराची। किसी भी बल्लेबाज के लिए ये बॉल बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, और जितनी परफेक्शन के साथ, पेस के साथ जमान खान हिट करते हैं यॉर्कर को, मेरा ख्याल है कि एजाज को ज्यादा ब्लेम किया नहीं जा सकता। ऑन स्पॉट था, मिडिल स्टंप को हिट कर रहा था, और इन द ब्लॉक होल। जब ऐसी पेस आपके पास हो, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नए बल्लेबाज को इतनी एक्यूरेसी से जब भी यॉर्कर किया जाएगा, विकेट हासिल जरूर होगी। स्लिंगिंग एक्शन के साथ इन स्विंगिंग यॉर्कर जो कि समझने से कासिर है, और बिल्कुल आपने जिस अंदाज से कहा कि तो टेल एंडर हैं, किसी भी बैटर के लिए मुश्किलात होती हैं इस अंदाज के एक्शन के साथ रीड करना, वो भी आखिरी लम्हात में। डेथ ओवर्स की शान है जमान खान ऑन हैट्रिक।
बड़ा मौका है जमान के लिए इस सीजन में, जहां पर उन्होंने डेथ ओवर्स में हर जगह अपना इम्पैक्ट क्रिएट किया वाइट बॉल से, और आज उनको मौका मिला है रावलपिंडी की टीम को कमबैक करवाने का और इसके साथ साथ इस मोमेंट को क्रिएट करने का। रावलाकोट के जमान के हाथ में गेंद, आसिफ आफरीदी उनका सामना करेंगे। 70 मैचेस में 471 रन हासिल कर पाए, 15 के पास है, शायद बेहतर होता कि ये ऊपर आते एजाज से, लेकिन ये मौका है जहां पर 3 फील्डर्स कवर्स में मौजूद हैं। शॉर्ट फाइनल के साथ ऑन हैट्रिक है जमान गेंद करने के लिए, अच्छी गेंद, एक मरतबा फिर आने वाले बैटर को मार्जिनली बचने के लिए आसिफ कॉन्शियस भी थे शॉट को खेलते हुए, लेकिन शानदार बॉलिंग, किसी फास्ट बॉलर का ख्वाब है डेथ ओवर में ऐसे बॉलिंग करना। एक्यूरेसी और पेस, ये महारत है जमान खान की। थोड़ा सा मेरे ख्याल में अगर विकेट के अंदर करते तो शायद चांस ज्यादा होता, लेकिन लेफ्ट हैंडर थे, शायद अंदर लाने की कोशिश की नहीं, एज हासिल करना चाह रहे थे। शॉर्ट गेट फिश गेंद ऑफर कर दी और चौका मिल जाएगा। आंखें हटा ली थी खेलते खेलते, बाउंस भी ज्यादा मिला, लेकिन हर रन को कबूल करेंगे। ये तो चौका है, वो भी पहला, और 150 भी पूरे हुए रावलपिंडी के खिलाफ फाटा के। आसिफ अफरीदी खड़े खड़े खेल गए। इस मौके पे बेहतर ये होता है कि यॉर्कर्स करते रहें या आगे गेंद करें, क्योंकि फील्डर्स जो हैं वो रिंग के अंदर मौजूद हैं बिहाइंड स्क्वायर, लेकिन मुसलसल यॉर्कर्स करना भी आसान नहीं। यस, दूसरी तरफ से स्ट्राइक पर आने के लिए बेताब है सलमान, दूसरे रन के लिए भागना चाहते हैं और बड़े जोशीले अंदाज से भागे। दूसरी जानिब जमान की दौड़ें लगी हुई हैं, जहां जा रहे हैं गेंद उनके पीछे है या वो गेंद के पीछे हैं, और चकमा देते हुए छेड़छाड़ आंख पर छोली का सिलसिला जारी। फिर गिर गए थे इस गेंद को लेते लेते, ऑकवर्ड पोजीशन में थे पहले फील्ड करते हुए भी मरीना जमान, तो उम्मीद करेंगे कि इस बिजी सीजन में अपने आप को हर्ट ना कर बैठें। लेकिन दूसरी तरफ रनिंग को नहीं भूलना होगा, पहला रन तेजी के साथ लिया और सलमान ने इस बात की परवाह ना करते हुए कि वो स्ट्राइक पर आए या अपने मजीद बड़े स्ट्रोक की जानिब जाए, दूसरे के लिए वापस गए। शानदार स्लो वन, बेहतरीन ओवर मुकम्मल जमान का, 2 विकेट्स हासिल की, 1 ओवर बाकी, 154 पे 7। आसान नहीं होता जब जमान खान जैसे बॉलर का आपको सामना करना पड़े डेथ ओवर्स में। पेस है, एक्यूरेसी है, वेरिएशन इनके पास है, स्लो वंस भी अच्छा करते हैं, इनटू द पिच अच्छी बॉल करते हैं, पर आपको एक्सिक्यूशन में मुश्किल जरूर आती है, और यही हो रहा है। सलमान भी एक टाइम पे आके रुक गए हुए, सिर्फ 2 रन बना पाए, 80 पे मौजूद थे, बड़े तेज शानदार 80 किए इन्होंने। आसिफ ने भी एक ही बाउंड्री हासिल की। शानदार बॉलिंग की ज़बान ने, ये पहली डिलीवरी थी। अगेन स्लिंगिंग एक्शन है तो आसान नहीं होता पिक करना। शॉर्ट पिच पे यहाँ पे विकेट हासिल करने में कामयाब हुए थे, जहांदाद ने कैच किया और ये एक अच्छा यॉर्कर। ऑलरेडी अपना बेहतरीन टोटल हासिल कर लिया फाटा ने। याद रहे कि यहाँ तक पहुँचने का सफ़र भी कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था। सुपर 8 में टूर्नामेंट के 18 में से 8 बेहतरीन टीमें पहुँचने में कामयाब रही हैं। रन रेट की बुनियाद पे ये बेहतर होने की वजह से क्वालिफाई करने में कामयाब रहे, लेकिन आज सलमान ने जिस अंदाज का एक एंड संभाले रखा है, आधे से ज़ायद रन अब तक उन्होंने ये तने तनहा बनाए हैं, वो क्लियर डिफरेंस है। और एक नौजवान को जब मौका मिलता है किस अंदाज से वो वंडर्स प्रोड्यूस कर सकता है, उसके वो जीता जागता सबूत। दूसरी जानिब इंटरेस्टिंगली काशिफ अली 3 ओवर में 16 रन देकर अपने आखिरी के लिए नहीं आए, जहांदाद ही गेंद कर रहे हैं। और आसिफ को हाथ खोलने का मौका मिल गया, फुल टॉस उनके सामने मौजूद थी, जैसे ही गेंद उनको मिली तोहफा समझ के कबूल किया और रवाना किया 6 के लिए। भारी गलती कर बैठे जहांदाद, काफी महंगे साबित हुए हैं इस मैच में। और पहली गेंद अगर आसिफ अफरीदी को आप ऐसी दे देंगे तो वो आंखें बंद करके भी मारेंगे। अपनी टांग को क्लियर किया और ये इनकी स्ट्रेंथ रही है, बड़ी हिट्स। ये तो जूसी फुल टॉस थी जिसको आसानी इन्होंने बाउंड्री के पार पहुंचाया। थोड़ी सी चेंजेस नजर आ रही हैं फील्ड में हमें। एक क्लैरिटी, एक प्लान के साथ बॉलिंग करनी पड़ेगी, वरना ये महंगा ओवर साबित हो सकता है। जो होना था हो चुका मरीना, मेरे लिए सरप्राइजिंग है और आई एम श्योर के ज्यादातर के लिए, क्योंकि मेरे सरप्राइज से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता कि ये क्यों हुआ। लेकिन आखिरी ओवर करने के लिए जहांदाद आए और उनके खिलाफ जोरदार अंदाज से चार्ज भी कर रहे हैं। हालांकि अगर आप बॉलिंग फिगर्स रेपुटेशन किसी भी बुनियाद पे देखते हैं तो बेहतर होते हैं कि गेंद करने के लिए आते काशिफ, लेकिन
दूसरे रन के लिए वापस आ रहे थे। बड़ा लंबा सफर तय करना था वहां पर फील्डर को, और रन बज़ाहिर लगता है कि वो पहुंचने में कामयाब हो गए। तो काशिफ एक बेहतर चॉइस हो सकते थे अगर बॉलिंग फिगर्स भी हम उनके देख रहे हैं तो 3 में 16 रन दिए, विकेट भी हासिल की। इसका जवाब सिर्फ शादाब भी दे सकते हैं कि क्यों चुना गया जहांदाद को, क्योंकि पिछले दोनों ओवर्स जो हमने देखे हैं जहांदाद के बहुत महंगे साबित हुए। अच्छी लाइन लेंथ नहीं थी, इनकंसिस्टेंट थी। शायद प्लान ये है कि आसिफ अली के बल्ले से दूर रखना होगा गेंद को। ज्यादा दूर रख दिया लगता है कि आपकी आवाज उन तक पहुंची और ऐसी भरपूर पहुंची कि अपने ही जो उन्होंने गड़ा खोदा था उसमें गिर गए। बड़े महंगे रन दे रहे हैं, 3 गेंदें अभी भी बाकी हैं। और अगर फाटा से मैच की इब्तिदा में आप पूछते, जो कि हमारे दोस्त अली यूनुस ने पूछा, तो वो शायद ऐसे ही टोटल की जानिब जाना चाहते थे। तो गेम तो उन्होंने लाइव कर दिया और ये आसान नज़र नहीं होने वाला। हालांकि इससे पहले कमबैक करके शादाब और नवाज की पार्टनरशिप से यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रावलपिंडी जीतने में कामयाब रहा था, लेकिन प्रेशर होगा एक लोअर रैंक टीम के खिलाफ खेलने का। और जहां तक अभी आपने काशिफ को स्क्रीन पे देखा, वो ठीक ठाक लग रहे हैं, तो बज़ाहिर कोई फिटनेस का ऐसा मसला नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर उनको लाने का फैसला नहीं किया। तमाम लिटिल एरिया ज़रूर हैं जो कि शायद बाद में, जिस तरह से आपने कहा कि शादाब उसका या तो जवाब दे सकते हैं या फिर उसको आने वाले वक्त में इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ना सिर्फ यहाँ बल्कि अभी बड़ा बिजी सीजन है जिसमें उनको कप्तानी करनी है अपनी PSL की फ्रेंचाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी। और ऐसे डिसीजन, क्योंकि पाकिस्तान को उन्होंने लीड किया था अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से, और वो एक को के नौजवानों पर मुश्तमिल टीम थी, लेकिन बड़ा एक्साइटिंग रिजल्ट रहा अफगानिस्तान के लिए। काफी सुन लिया लगता है उन्होंने आपको, आप तलकीन करेंगे, इतना भी दूर रखने का नहीं कहा था। प्लानिंग सही है और मेरा ख्याल है कि आसिफ के खिलाफ ये प्लान भी सही है, लेकिन एक्सिक्यूशन जो है वो अच्छी नहीं रही। जहांदाद टैलेंट इनमें मौजूद है, लेकिन आज अंडर प्रेशर रहे हैं। एक बार फिर बहुत ज़्यादा एंगल कर रहे हैं आउटसाइड ऑफ स्टंप, और ये बिल्कुल भी कारआमद साबित नहीं हो रहा रावलपिंडी के लिए। ये तीसरी गेंद वाइड है जो कि अपनी जान लगाकर वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। आसिफ आफरीदी जो कि लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल भी भरपूर करते हैं और ऑन साइड पर अपने तजर्बे का इस्तेमाल करते हुए शॉट्स भी लगाते हैं। शायद इतने अगर अब बचने की कोशिश करेंगे तो मुश्किलात बढ़ेंगी। उमर अमीन आए हैं बात करने के लिए अपने कप्तान से। शादाब के आने से कबल उमर अमीन ही लीड कर रहे थे रावलपिंडी की टीम को और अपने तमाम मैचेस जीत कर पहुंचे थे, और अब फील्ड में तब्दीली करने का फैसला किया है। लगता है कि वो जो उनको डायरेक्शन दी थी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप जाने की, अब उससे उन्होंने अपने आप को विड्रॉ करवा लिया है और फील्डर चले गए मुबस्सिर स्क्वायर लेग की बाउंड्री पे। सो एक्सपेक्ट कीजिए शॉर्ट बॉल या फिर कम से कम स्टंप्स की लाइन में आते हुए फाइनली जहांदाद से। लेकिन एक मरतबा फिर ऑफ स्टंप के बाहर और इस मरतबा बॉर्डर लाइन पे थे, बच निकले। चेंज हमने फील्ड में जरूर देखा है, मेरा ख्याल है ये चीज कम्युनिकेट जरूर की गई होगी जहांदाद को। थोड़ा गेंद आगे भी करना पड़ेगा, लेंथ बॉल कर रहे हैं। अगर लेंथ बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप भी की तो बासानी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से भी आसिफ बाउंड्री हासिल कर लेते हैं। अब देखना पड़ेगा कि ये गेंद कहाँ जा रहा है जहांदाद का। खींच कर आखिरी गेंद को खेलने के लिए गए थे बाउंड्री की जानिब, लेकिन पहुंच जाएंगे वहां पर नवाज दूसरे रन के लिए भी वापस। तो इन 3 वाइड्स की बदौलत रन जरूर समेटे। ओवर की इब्तिदा में छक्का भी लगाया था, लेकिन उसके बाद से बगैर बाउंड्री के बच निकलने में कामयाब रहे जहांदाद। एक फाइटिंग टोटल दिया है जो कि 8.5 रन पर ओवर के करीब का बनता है मरीना। तो एक गेम को हम लाइव समझ सकते हैं। फाटा ने दिल खोल कर मुकाबला किया और एक अच्छा चैलेंजिंग टोटल पुटअप किया है रावलपिंडी की स्ट्रॉन्ग स्टार स्टडेड टीम के लिए। बिल्कुल इसमें दाद देनी पड़ेगी सलमान को, बहुत ही शानदार इनिंग्स उन्होंने खेली है 83 की, और ये एक चैलेंजिंग जैसे आपने कहा टोटल हो सकता है। अब ये किस क्लैरिटी के साथ आके किन प्लान्स के साथ और किस एग्जीक्यूशन से बॉलिंग करते हैं ये बहुत अहम होगा, क्योंकि रावलपिंडी को थोड़े से हिकअप जरूर रहे हैं बैटिंग की। जहाँ तक हम बात करें तो अंडर प्रेशर कर सकते हैं फाटा, लेकिन पूरे एप्रिसिएशन के हकदार हैं सलमान। जिस तरीके से इन्होंने इनिंग्स बिल्ड की, अटैक करते रहे बॉलर्स को, कोई भी लूज डिलीवरी को नहीं छोड़ा। और दूसरी तरफ शानदार बॉलिंग जमान खान की जानिब से 3 विकेट इन्होंने हासिल की, अच्छी पेस के साथ बॉलिंग करते रहे।
22 साल मोहम्मद एजेंसी के सलमान खान का ये अब तक का मोमेंट है। अब देखना ये कि इनकी इस इनिंग्स को, जो कि ऑलरेडी उनके अव्वलीन सीजन में करियर बेस्ट है, कितना अपने लिए माने में बदल सकते हैं। आधे ही रन्स आप समझ लीजिए कि अकेले अब्बास ने, सलमान ने बनाए, अदरवाइज शायद वो उसके करीबी पहुंचने में कामयाब ना हो पाते। जल्द विकेट हासिल कर ली थी समीउल्लाह की। काशिफ ने स्ट्रॉन्ग अपील रेहान के खिलाफ भी की थी और वो उसके बाद से एक बड़ी इनिंग्स बनाने में कामयाब ना हो सके, लेकिन सलमान का क्लियर फर्क मौजूद रहा। उनको कॉन्ट्रीब्यूशंस मिलती नहीं दूसरे एंड से खुशदिल शाह और शाहिद की सूरत में, लेकिन ये वाज़ेह फर्क था जो फाटा और रावलपिंडी के बीच रहा 83 रन का नौजवान सलमान खान का। बॉलर्स ने स्ट्रगल जरूर किया, लेकिन सलमान खान ने लाजवाब बॉलिंग की, 3 विकेट हासिल की। एक विकेट काशिफ, शादाब और जहांदाद की जानिब हुई। शादाब और जहांदाद काफी महंगे साबित हुए और आखिरी ओवर उम्मीदों पे पूरा उतर ना सका जहांदाद का। ये डिसीजन काफी इंटरेस्टिंग था, महंगा भी साबित हो सकता है और आप ये कह सकते हैं कि इस मैच का मेक एंड ब्रेक पॉइंट भी हो सकता है। शाह फैसल तैयार हैं बात करने के लिए जमान से, जिन्होंने शानदार स्पेल मुकम्मल किया है। सो ओवर टू शाह फैसल। शुक्रिया अकील, और बहुत जबरदस्त बॉलिंग की जमान आपने। पहले विकेट के बारे में कुछ बताइए, कैसा आपने असेस किया पिच को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू से काफ़ी अच्छा बॉल निकल रहा था, ये था कि स्विंग भी हो रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कोचेज़ ने प्लान दिया था उसी मुताबिक पे जा रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया। और आप एक थोड़ा सा हमें फिक्र हुई जब आप यहाँ स्लिप हुए, पहले आप हैमस्ट्रिंग को आपने पकड़ा, फिर अगली बॉल फिर स्लिप हुए, वो भी लगने लगी थी। अब आप ठीक हैं, बिल्कुल खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा हूँ आखिर पे, क्योंकि ज़रूरत थी ऐसे टाइम पे आने की, तो मैंने कहा इंजर्ड हूँ या जो भी हूँ टीम के लिए मैंने लास्ट पे करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कॉन्फिडेंस लिया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी फिट हूँ माशा। और आपकी यॉर्कर बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन हम काफ़ी अरसे से आपको देख रहे हैं पीएसएल में भी, जो बड़े बड़े बैट्समैन हैं वो आपका शॉर्ट पिच बॉल वो उनको नहीं चेक होता। नहीं, काफ़ी प्रैक्टिस करता हूँ इन चीज़ों पे, क्योंकि इन चीज़ों पे प्रैक्टिस नहीं होती तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है ग्राउंड में लेके जाना। इसी की मैं काफ़ी प्रैक्टिस करता हूँ। जब हमारी प्रैक्टिस ख़त्म होती है मैं उस प्रैक्टिस की एक मसला निशान रखता हूँ, उसको हिटिंग करता हूँ, 2 ओवर 3 ओवर वो करता रहता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैच में भी परफेक्ट पड़ती है। और ये जो टारगेट है, आपने इस विकेट पे बॉलिंग की 169, कैसे देखते हैं अपनी टीम को? कैसे नहीं, चेज़ विकेट करेंगे? माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है, हमारे प्लेयर भी अच्छे हैं माशाल्लाह। अभी हम 4 मैच खेले हैं, चारों जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बैटिंग बहुत अच्छी हो रही है और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि हमारी टीम जीत जाएगी। चले जमान, यू बॉल्ड वेरी वेल, गो वेल फॉर द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। थैंक यू। यूं फाटा की टीम को पहले बैटिंग करने की जरूरत पड़ी और एक तूफान उनके सामने आ पड़ा था, लेकिन इसके सामने चार्ज करने की कोशिश की सामने मौजूद समीउल्लाह जूनियर रेहान अफरीदी ने, लेकिन उसके बाद विकेट हासिल हुई जल्द राइट हैंडेड बैटर की, और फिर जब से स्पिनर्स आए अपने चार्ज को शुरू किया। ये आने वाले बैटर थे सलमान खान, जिन्होंने आकर इस मैच को लूट लिया। दूसरी तरफ से जमान ने अपने कमबैक ओवर में विकेट हासिल की, लेकिन ऑन स्लॉट का सिलसिला जारी रहा। 22 साल सलमान खान जो कि टॉप इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे, लेकिन इनको मुखालिफ एंड से वो सपोर्ट हासिल ना हो सकी। 50 बनाई अपनी इसी सीजन में और 7 टॉप स्कोर करने में कामयाब रहे। साथ साथ जो दरमियान के ओवर्स में इन्होंने तेजी के साथ बैटिंग की थी वो नलिफाई हो गई इस शानदार एफर्ट से, जो कि चार्ज किया खुशदिल शाह की विकेट, जो कि वेल एंड ट्रूली टर्निंग मोमेंट थी इस गेम का, जिसके बाद वो जो बड़ा टोटल हासिल करना चाहते थे उसकी जानिब वो पेशकदमी जारी ना रख सके। विकेट्स भी हासिल होती रही, लेकिन आखिरी ओवर्स में चंद बाउंड्रीज और चंद एक्स्ट्रास की बदौलत ये 168 तक भी पहुंचने में कामयाब रहे। जमान का सेकंड लास्ट ओवर था जिसमें बैक टू बैक विकेट्स उन्होंने हासिल की और उसके साथ उन्होंने टीम को वेल एंड ट्रूली वापस लाकर खड़ा कर दिया। 8.5 रन पर ओवर की औसत है, 169 का टारगेट है। ये सुपर सैटरडे है जहां पर रावलपिंडी अपनी इस फतूहात के सिलसिले को जारी रखने की कोशिश करेगा। क्या होगा आप तक पहुंचेगा कुछ ही लम्हात में नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची से। गुड लुकिंग स्ट्रोक के साथ चौकों के सिलसिले का आगाज किया है और समीउल्लाह ने सीधा खेल दिया शादाब की जानिब। Pulled away. Oh, gone right there. You know when Zaman is bowling, the Yorkers will come about. Just tips over the rope. He's gone big. Wheeler's lining it up and will take it. Gone, yes. Shadab has done it for his team.
रावलपिंडी को 169 रन दरकार हैं फतह हासिल करने के लिए। औसत बनती है 8.5 रन पर ओवर की। जिशान मलिक जो 2 सेंचुरीज बन चुकी हैं उनमें से एक हैं। यासिर खान इनको ज्वाइन करेंगे, जबकि दूसरी जाने फाटा के भी स्पिरिट्स इस वक्त आसमान से बातें कर रहे होंगे जिस अंदाज का उन्होंने टारगेट दिया है रावलपिंडी को जीतने के लिए। और गो के अब तक चाहे स्टेडियम की बात हो या दीगर मुकाबलों की सुपर 8 के मरहले में हमें वैसे क्लोज फिनिश नहीं मिल सके हैं जो कि टूर्नामेंट की इब्तिदा में मिले थे, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आज ये सिलसिला भी टूटे और T20 क्रिकेट का जो खासा है वो आखिरी बॉल तक का फिनिश और कुछ ऐसे हार्ड थ्रिलर्स जो कि आप तक पहुंच पाए वो हम यहाँ पे देखने में कामयाब हो। मेरे साथ कॉम बॉक्स में मौजूद है शाह फैसल। बड़ी फाइट पुट अप किया अब तक फाटा ने कम से कम बैटिंग करते हुए, लेकिन अभी भी वो समझेंगे कि कोई 15-20 रन ऐसे थे जो कि शायद वो पीछे रह गए। जी, मुख्तलिफ फेजेस उनकी इनिंग्स की चली, 169 तक आखिर में पहुँचने में कामयाब हुए। और इस टूर्नामेंट में हमने देखा है कि जो चेज़ है वो इतनी बड़ी चेज़ हुई नहीं अभी तक। तो ये जैसे आपने कहा कि हमें क्लोज गेम अभी तक नहीं मिला, तकरीबन 6 मैचेस हो चुके हैं सुपर 8 के, लेकिन शायद ये मैच होगा जो टोटल सजा है, ये लगता है कि क्लोज फिनिश होगा क्योंकि फाटा फाइट तो करेगी और पिंडी की टीम में बहुत ही प्रोलिफिक बैटर्स और ऑलराउंडर्स मौजूद हैं। 8.45 की जो एवरेज है ये टेस्टिंग तो ज़रूर होगी, लेकिन पिंडी की टीम ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग लग रही है। लेकिन जैसा हम हमेशा और कई दफ़ा ये कह चुके हैं, टीम्स फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा उनकी ये खासियत है कि वो आखिर तक फाइट करते हैं और वो गिव अप नहीं करते। यासिर खान जिन्होंने 150 बना रखी है सीज़न में, रावलपिंडी के लिए उनको खेलने का मौका मिला है और एक ऐसी टीम के लिए वो ओपन करने के लिए आ रहे हैं जिसमें आपको हर लहजा बड़े क्रिकेटर्स दिखाई देते हैं, चाहे उमर अमीन हो, शादाब, नवाज़, हैदर अली, और इन्हीं की ख़ास तौर पर शादाब और नवाज़ की शराकत की सूरत में ये फाइट बैक करने में कामयाब रहे थे। दूसरी जानिब मौजूद हैं जिशान मलिक जो कि सेंचुरी बना चुके हैं इस टूर्नामेंट में। यही उनकी अब तक के करियर की वाहिद T20 की सेंचुरी है, लेकिन इसके अलावा भी उनका टैलेंट शानदार है। स्ट्राइक रेट भी जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट में रिक्वायर्ड होता है 100 से सिग्निफिकेंटली ज़ायद। दूसरी जानिब मौजूद हैं इरफानुल्लाह शाह, तवील कदकाट के हामिल जो कि अपने बॉलिंग की शुरुआत करेंगे और ये मौका देगा दूसरी जानिब ख़ास तौर पर जिशान मलिक को जो कि कट और पुल करने के लिए शोहरत रखते हैं कि वो उनके बाउंस का इस्तेमाल कर सकें। स्लिप के साथ बॉलिंग करने के लिए शुरुआत कर रहे हैं नौजवान इरफान, जो ट्रेडिशनल फील्ड है उसके साथ साथ थर्ड मैन पर भी फील्डर रखने का फैसला किया है, जबकि बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक फील्डर है। एक्शन पैक इनिंग्स होनी चाहिए इस तवक्कात के साथ। प्लेज द कॉल कहा है राशिद रियाज ने। यूनिवर्सिटी रोड एंड से अपनी पहली गेंद करने के लिए तैयार। खूबसूरत डिलीवरी, बाउंस तो देखिए कैसे बीट किया और उसके बाद स्टंप्स को क्रॉस करती हुई अपने सीने की हाइट पे विकेट कीपर को हासिल करनी पड़ी अगेन। बाउंस और मूवमेंट बैक ऑफ अ लेंथ, ये देखिए विकेटों के करीब से उन्होंने बॉल किया। इरफानुल्लाह शाह इस फॉर्मेट में ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेले, लेकिन अच्छी खासी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए हैं और बहुत ही प्रोलिफिक सीम बॉलर हैं ये इनकी नेचुरल लेंथ है और नई बॉल से तवील कामत होने की वजह से अच्छा बाउंस हासिल किया। एक स्लिप मौजूद, अच्छा कॉन्टेस्ट होगा इन फॉर्म यासिर और जिशान के दरमियान। वंस अगेन मूवमेंट और बीट किया बैटर को। आप जिक्र कर रहे थे इस टूर्नामेंट में जो बड़े स्कोर्स को चेज करने की कोशिश की उसमें नाकामी का कराची वाइट्स ने डेरा मुराद जमाली के खिलाफ 183 रन बनाए थे। वंस अगेन गेंद को शॉर्ट पिच तो किया लेकिन बीट किया बैट्समैन को लेंथ से। और दूसरी जानिब रावलपिंडी ने एबटाबाद के खिलाफ 178 रन बनाए हैं। तो अगर ये टूर्नामेंट बनाने में कामयाब रहते हैं, इस चेज़ को हासिल कर पाते हैं, तो तीसरा बेहतरीन चेज़ होगा इस टूर्नामेंट का, और वो भी फाटा की इस ऐसी टीम के खिलाफ जिसके स्पिरिट्स इस वक्त हाई हैं एक अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस के बाद। यासिर ऊंचा खेल गए और फील्डर 3 जमा हो रहे हैं, लेकिन तीनों के दरमियान में गेंद गिर जाएगी। एजाज जिनको बाउंड्री लाइन से आगे के जाने भागना था उनके लिए मौका था और शायद उन्होंने कॉल भी कर दी थी, लेकिन एक दूसरे को देखते रह गए और इसी असना में पहले आप में कैच ड्रॉप हो गया। काफ़ी नाखुश नजर आया खुशदिल, लेकिन यहाँ बहुत ही स्लॉपी रनिंग है यासिर की। वो खड़े होकर बॉल को देखते रहे और एक रन मिस कर गए। यहाँ बॉल जाहिर है कैच एजाज का ही था जो कि बिल्कुल सीध में दौड़ते हुए आ रहे थे। इरफान और खुशदिल शाह, वाओ,
आंखों से शोले निकल रहे हैं खुशदिल के। वो तो आपने सुना होगा, खिलाओ सोने का नवाला, सोने का नवाला तो उसमें मौजूद नहीं था, लेकिन शेर की निगाह जरूर थी, जिसे खुशदिल शाह ने देखा। और जब तक अब मौजूद रहेंगे यासिर, तब तक भारी पड़ेंगे। लेकिन दूसरी जानिब इरफान उल्लाह पे क्या गुजरेगी वो सोचना होगा, क्योंकि वो शायद अपने सीनियर पार्टनर के खिलाफ ऐसे चीख भी नहीं सकते थे। उनको बार बार अपने आप को मुजतमा करना पड़ेगा। पहले ओवर में आप विकेट हासिल कर लेते ओपनर की ऐसी खूबसूरत बाउंस और पेसी डिलीवरी के साथ, तो क्या हौसले अलग होते। अभी भी दोबारा से कम बैक करना पड़ेगा रावलपिंडी को। और ये रिएक्शन तो देखने वाला है, इरफान उल्लाह शाह और खुशदिल। कुछ कहने की जरूरत नहीं। वो वेट नहीं दे रहे, जिसको ज़ीशान कट करने की शोरा रखते हैं। और पूरा दिल खोल के बॉलिंग की है इरफान उल्लाह ने, शानदार ओवर किया है। और अचानक से इस ओवर के बाद अगर विकेट हासिल नहीं भी करते इरफान, तो नेट रन रेट जो रिक्वायर्ड है, इनफैक्ट आस्किंग रेट, वो बढ़ता जाएगा, जो कि इनिंग्स की इब्तिदा में अभी भी 8.5 रन पर ओवर का है। लेकिन हर ऐसी बॉल के साथ इस पर प्रेशर बढ़ेगा। ज़ीशान ने 58 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है, 158 के, जो कि गो के सेंचुरी भी बना चुके हैं। साथ साथ उन्होंने मौके से पूरा फ़ायदा उठाया इस टूर्नामेंट में। कराची में आकर उनके पैरों में लगता है कि स्प्रिंग लग चुके हैं, लेकिन आज क्लियरली दिख रहा है कि अच्छी बॉलिंग का प्रेशर में 3 फील्डर आ गए दायरे के अंदर ऑन में और चार्ज करने के लिए गए, लेकिन एजाज के पास एक बाउंस के बाद गेंद पहुंचेगी। बेहतरीन ओवर इरफान का, जो कि शोमई किस्मत अपनी पहली विकेट हासिल ना कर पाए। 2 रावलपिंडी बिना किसी नुकसान के। अच्छा ओवर था इरफान उल्लाह शाह का, अच्छी मूवमेंट उन्हें मिली। एक हाफ एन अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन एजाज कैच हासिल करने में नाकाम रहे। यासिर ने अपने इंटेंशंस क्लियरली बता दिए हैं कि वो तो बिल्कुल भी बैकफुट पर नहीं खेलेंगे और वो अटैक करेंगे इस पावर प्ले में। लंबी बैटिंग लाइनअप है रावलपिंडी की, तो नई बॉल से चांस लेंगे वो, और ये उन्होंने बताया पहले ही ओवर में। शायद अजीज काफ़ी टैलेंटेड क्रिकेटर हैं, इस सीज़न उन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी देखा, 6 विकेटें हासिल की हैं इस फॉर्मेट में। 6 टैलेंटेड क्रिकेटर हैं, बोथ विद द बैट एंड द बॉल। फाइन लेग का फील्डर वापस चला गया है बाउंड्री पर, और स्क्वायर लेग बल्कि मिड विकेट पे फील्डर आ गया इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर। और एक वाइड स्लिप है, रेगुलेशन स्लिप नहीं है, काफी वाइड खड़ी है पहली स्लिप। खूबसूरत गेंद के साथ शुरुआत की है। शाहिद अभी भी ताज़ा हैं उन 18 रन के साथ, जो कि 6 गेंदों पे उन्होंने मुकम्मल किए थे, और उसके बाद वैसे भी आपके हौसले बुलंद होते हैं। हर डॉट बॉल के साथ ये दबाव बढ़ रहा है रावलपिंडी पे, और जो आपको जज्बात दिख रहे हैं फाटा के खिलाड़ियों के चेहरों पे, जिस अंदाज की परफॉर्मेंस और मूवमेंट हासिल कर रहे हैं, वो काबिल दीद। बिल्कुल, और एक इनके एक्शन में थोड़ी सी झलक नजर आती है जिमी एंडरसन की। हमने ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी नोटिस किया था, आप करीब से देखिए इनका एक्शन। और वो जिमी एंडरसन वाली आउट स्विंग भी, अच्छा कैरी, शोल्डर्स का अच्छा इस्तेमाल किया। अच्छी क्रिकेटिंग पिच है ये। यस, एक बार फिर चूक नहीं रहे हैं इस गेंद को शॉर्ट पिच करने से, जिसके जरिए से उनको मूवमेंट भी हासिल हो रही है और बांध के रखा हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि ज़ीशान मलिक को किसी रिदम की या फॉर्म की ज़रूरत हो, लेकिन अगर इस अंदाज की शानदार बॉलिंग हो तो फिर उसमें आपके जहन में डाउट ज़रूर आ जाते हैं। और अब शायद वक्त आन पड़ा है कि वो बड़े शॉट के लिए जाएं। रीजन खाली पड़ा है कवर्स में दायरे के पीछे, और इस्तेमाल करने का फैसला किया था उन्होंने कुव्वत का, लेकिन पहला ब्लड ड्रॉ कर लिया है शाहिद ने। 2 कदम आगे आए थे, लेकिन आसिफ आफरीदी के महफूज हाथ कहां छोड़ने वाले थे इस मौके को। टॉप विकेट हासिल की है रावलपिंडी के, इससे पहले के सेंचुरियन की। लगता है थोड़ी सी जल्दी कर गए ज़ीशान, अच्छी मूवमेंट मिल रही थी शाहिद को, और उनकी लेंथ और लाइन भी बहुत जबरदस्त थी। इंप्रोवाइज करने की कोशिश की, एक शॉट क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन बॉटम पे लगा बॉल और आसिफ आफरीदी ने आसान कैच हासिल किया। यहाँ ज्यादा देर मूवमेंट देखने को मिलती नहीं, लेकिन ज़ीशान
इंतजार नहीं कर सके और अपनी अच्छी फॉर्म का फायदा भी नहीं उठा सके। 1 रन बनाकर आउट हुए। 2 पर 1 रावलपिंडी। उमर अमीन आने वाले बैटर हैं जो कि इससे पहले लीड कर रहे थे रावलपिंडी को। ये टूर्नामेंट बहैसियत बैट्समैन के उनका काबिल ज़िक्र नहीं गुजरा। अब तक 3 इनिंग्स में उन्होंने 36 रन बनाए हैं, लेकिन बड़ा एक्सपीरियंस है उनके पास और उसके साथ साथ उनके पास शादाब, हैदर अली, नवाज के आने की सहूलत भी बाकी है। लेकिन जिस अंदाज की बॉलिंग और मूवमेंट पेस दिख रहा है इस वक्त फाटा के खिलाड़ियों की जानिब से, वो अचानक से उनको किसी ऑन स्लॉट को दिखाने का मौका नहीं देगा। शाहिद ने ड्रामाई आगाज़ दिया है, 2 खूबसूरत आउट स्विंगर्स के साथ उन्होंने बैट्समैन को मजबूर किया बीट होते रहे ज़िशान मलिक को कि वो शॉट को एग्जीक्यूट करने के लिए जाएं, और वहाँ पर उन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया और चूक गए। और देखिए अब आने वाले बैटर लेफ्ट हैंडर के लिए स्लिप भी लेने का फैसला किया है। खुशदिल शाह खुद मौजूद हैं, जबकि 4 फील्डर दायरे के अंदर कवर्स में राउंड द विकेट आ रहे हैं गेंद करने के लिए। एक्सपेक्ट कीजिएगा इन स्विंगर उमर अमीन के खिलाफ। एंगल चेंज किया शाहिद ने। लेफ्ट हैंडेड उमर अमीन के लिए राउंड द विकेट आए और वाइड कंसीड कर गए, लेकिन अच्छी बॉलिंग की। पहले 2 गेंदें ज़ीशान को बिल्कुल समझ नहीं आई और यहां उन्होंने चार्ज करने का फैसला किया। बहुत लो परसेंटेज शॉट था और बॉटम पे लगा। ज़ीशान जैसे मैंने कहा अपनी अच्छी फॉर्म का फायदा नहीं उठा सके। बड़ी स्टेज थी ये, लेकिन अब सोच रहे होंगे कि शायद उन्होंने जल्दी कर दी। फिर मूवमेंट मिल रही है शायद को। इस मतलब अभी लाइन ठीक नहीं थी, लेकिन ज्यादा नुकसान हुआ नहीं। जी हाँ, शायद अजीज जैसे बॉलर्स अगर पुराना फॉर्मेट होता तो आप शायद तवक्को ना कर पाते कि वो इस लेवल पे खास तौर पर T20 बॉलिंग में अपने जौहर दिखा पाते। आज़ाद जम्मू कश्मीर के खिलाफ इन्होंने मैच विनिंग कारकर्दगी दिखाई, 4 विकेट्स हासिल की। सियालकोट की स्टार स्टडेड टीम में भी 2 खिलाड़ियों को वो आउट करने में कामयाब रहे। और ये फाटा की हाईली स्पिरिटेड टीम है जिसको आज दिल खोल कर सुपर 8 के मरहले के इस नेशनल बैंक स्टेडियम के पहले मैच में परफॉर्म करने का मौका मिला है। और ज़बरदस्त बॉलिंग की अब तक। पहले फाइटिंग टोटल पुटअप किया और अब बांध के रखा हुआ है, किसी बाउंड्री के बगैर गुजार रहे हैं। डिजर्व कर रहे थे शायद दूसरे एंड से इरफान भी अभी अपनी पहली विकेट, लेकिन शानदार बॉलिंग। और जहाँ मेंशन कर रहे थे कल के मैच में पेशावर या खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले खिलाड़ियों के हवाले से, ये ज़्यादा टीम्स के होने की वजह से फ़ायदा ये हुआ है कि 3 टीम्स इनकी क्वालिफाई करने में कामयाब रही हैं इस मरहले में। और फिर फेमसली इनके गेस्ट प्लेयर्स भी दूसरी टीम्स में खेल रहे हैं, जो कि बेशुमार टैलेंट का मुंह बोलता सबूत है। जी बिल्कुल, बहुत ही जरखेज एरिया है वो टैलेंट के हिसाब से। फिर वाइड बॉल हो गई। और सिर्फ टैलेंट ही नहीं है अकील, यहाँ बात करेंगे कि जो डेडिकेशन है और जो सेक्रीफाइसेस इनको करने पड़ते हैं उसकी भी मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो केपी में या तो पेशावर में है, या फिर इवन जिस तरह आप नसीम शाह और उनकी फैमिली की मिसाल ले लें, वो मूव होकर यहाँ लाहौर आए सिर्फ अपनी क्रिकेट को परसू करने के लिए। और आज देखें कि वो तीनों भाई, नसीम पाकिस्तान की टीम में हैं, हुनैन फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, उबैद पाकिस्तान अंडर 19 की टीम में है। ऐसी कई मिसालें हैं, जो रीलोकेट होना पड़े तो वो रीलोकेट हो जाते हैं, क्योंकि उनका जज्बा और स्पिरिट ऐसी है कि वो कोशिश करते हैं उस मंजिल के हुसूल के लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े तो वो देते हैं। 2 ओवर्स के बाद 5 पर 1 रावलपिंडी। इरफान अपने दूसरे ओवर की शुरुआत करने वाले हैं। पहले ओवर में भी इन्होंने अपने लंबे कद काट का पूरा फ़ायदा उठाया और जिस पिच का आपने बार बार जिक्र किया है, शाह फैसल आज पूरा सपोर्टिंग रोल प्ले कर रही है। जहां पर कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर बैट्समैन को रन्स भी हासिल हो रहे हैं, लेकिन अब तक नई गेंद के साथ शानदार मूवमेंट हासिल किया दोनों एंड से। ख़ास तौर पर उधर से आते हुए नौजवान इरफान ने
अपने शानदार पेस और बाउंस से बीट किया बैटर्स को। बेहतरीन डिलीवरी, जबकि रन लेने के लिए लपके हैं। खुशदिल शाह ने चार्ज किया था और जिस अंदाज से वो रन आउट हुए थे वैसे ही उन्होंने बदला चुकाने की कोशिश की, लेकिन क्विक रन हासिल किया। टॉप क्वालिटी क्रिकेट कराची में। अभी तक लाइन में चुके हैं फाटा के बॉलर्स, लेकिन लेंथ लाजवाब है और कोई फ्री भी नहीं दी अभी तक। कोई ऐसा बाउंड्री बॉल नहीं मिला। ये भी रिस्की रन था। उमर अमीन ने इस जरूरत को महसूस किया कि अगर बाउंड्री नहीं आ रही तो स्ट्राइक रोटेशन तो जरूर करनी है, और कैलकुलेटेड रिस्क लिया। डायरेक्ट हिट होती तो काफी करीबी मामला हो सकता था। अब जो बिग हिटिंग यासिर आ गए हैं, पावर प्ले बहुत ही क्रूशल है, क्योंकि यहाँ नई बॉल से अगर आप रन्स करने में कामयाब हो गए तो आपका बाद का काम काफी आसान हो जाएगा। ऑन द टॉप ऑफ द बाउंस के शॉट खेलने के लिए यासिर, और पहला चौका लगाने का मौका मिल गया। फाइनली बेहतरीन शॉट, गैप में महफूज और बाउंड्री की जानिब। ये एक अच्छी विकेट की निशानी है कि जब आप इस तरह बाउंस को ट्रस्ट कर सकते हैं और ये स्ट्रोक्स खेल सकते हैं। लाजवाब स्ट्रोक था, सीधे बल्ले के साथ वेट ट्रांसफर अच्छा, और अकील ने कहा बाउंस को राइड किया, बल्ले के बीचों बीच लिया और सिर्फ टाइम किया बॉल को गैप के अंदर। अच्छी प्लेसमेंट, इससे एतमाद में इजाफा होगा यासिर के। खूबसूरत स्ट्रोक। और एक मरतबा फिर ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा आसानी के साथ गेंद चली जाएगी। जहां विड्थ मिली यासिर को, उनको हाथ खोलने का मौका मिला। 2 ब्लो पहुंचा दिए फाटा को। पिक्चर परफेक्ट, बहुत ही शानदार स्ट्रोक था। एक मरतबा फिर यासिर गेंद को टाइम कर रहे हैं सिर्फ। गेंद उनके बल्ले से लगने के बाद बहुत तेजी से गई। प्लेसमेंट की भी दाद देनी होगी। क्या लाजवाब बैट्समैनशिप है ये। पावर प्ले में भी आप ऐसे स्ट्रोक्स खेल सकते हैं, T20 क्रिकेट में भी आप ऐसे स्ट्रोक्स खेल सकते हैं। इसका बावर करवाया है यासिर ने इन 2 बाउंड्रीज के जरिए। फील्ड चूंकि तू रखने का फैसला किया है, लेकिन अब शायद वो विड्थ ना दें जो जिसके फायदा उठा रहे थे, लेकिन दोबारा दी है और इस पर भी चढ़ के खेलने की कोशिश की। अच्छा कम बैक किया है, ज्यादा दूर से रहकर इस शॉट को खेलने की जरूरत पड़ी। और 2 चौकों से गो के अभी भी ये अर्ली डेज हैं इस इनिंग्स में, लेकिन आपको एक निगाह रखनी पड़ेगी। ऐसे टोटल के पीछे जाते हुए रिक्वायर्ड रेट पे वो 9 रन पर ओवर से नीचे आ गया, जो कि सिग्निफिकेंटली ऊपर जा रहा था 9.25 रन पर ओवर से। तो ये बाउंड्री के शॉट्स हैं जो कि अचानक से कॉम्प्लेक्शन को चेंज कर सकते हैं। पावर प्ले में बाउंड्रीज काउंट इंपॉर्टेंट होती है, और बगैर रिस्क लिए अगर आप वो हासिल कर लें तो क्या ही बात, क्योंकि मूवमेंट हम देख रहे हैं, मूवमेंट और बाउंस। अच्छा खेलते खेलते इसमें गैर जरूरी रश ऑफ ब्लड का मुजाहरा पेश किया है। इसी रीजन से उन्होंने 2 चौके निकाले थे। जब इतने जबरदस्त क्रिकेटिंग शॉट आपको देखने को मिले और फिर ये बहुत ही बदसूरत स्लॉग, देखिए सर कहाँ था और पैर कहाँ, बॉल कहाँ। यही उमर ने शायद समझाया होगा कि जब आप इतना अच्छा बॉल को देख रहे हैं तो प्री मेडिटेट ना करें, आप मेरिट पे खेलें। इस ओवर के रन्स तो आ ही चुके हैं। बॉल को बाउंड्री बनाने की कोशिश अभी ना करें, टू अर्ली है। फील्ड में तब्दीली इसकी वजह से, और लॉन्ग ऑन को पीछे भेज दिया गया है। मिड विकेट का फील्डर कवर से आया है दायरे के अंदर, और शॉर्ट थर्ड का फील्डर भी आ गया है। अब एक शॉट में हलचल मचा दी फाटा के खेमे में। ये भी एक हिकमत अमली होती है बैटर्स की कि बॉलर्स के फील्डिंग प्लान और बॉलिंग प्लान को डिस्टर्ब किया जाए। बुरी तरह से डिस्टर्ब हो गए, जो कि स्टंप्स की लाइन में आना चाह रहे थे, लेकिन ये स्विंगर करने की कोशिश में ज़्यादा चूक गए। आइडिया शायद बुरा नहीं था, फील्ड भी उन्होंने ऑन साइड की ली थी जिस पर फ्लिक करने के लिए जाना भी था, और उसके बगैर शायद चारा भी नहीं है। आप रावलपिंडी जैसे टीम को ऐसे टोटल के सामने महदूद रख के उनको उनके खिलाफ फतह नहीं हासिल कर सकेंगे। आपको शायद बॉल आउट ही करना पड़ेगा। ये ऐसा 190 या 200 का टोटल भी नहीं है जिसमें आप एक डिस्टेंस से उनको रोकने में कामयाब हों, और उसके लिए विकेट्स की ज़रूरत होगी। इब्तिदा में अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन अब राइट हैंडर के खिलाफ खास तौर पे स्ट्रगल कर रहे हैं। और फिर तब्दीली, अब चले गए स्क्वायरिश मिड विकेट पे फील्डर, और साथ साथ कॉर्नर को खाली छोड़ दिया। क्या लग रहा है शाफिज? शायद स्लो डिलीवरी करेंगे, ललचाएंगे के बाहर इनटू द पिच। एक मतलब फिर मूवमेंट और 2 बाउंड्रीज और एक वाइड के अलावा
अच्छा ओवर था, लेकिन 10 रन फिर भी आ गए और 3 के बाद 15 पर 1। इसी अंदाज की बॉलिंग से इब्तिदा की थी जिसे बीट करवाने में कामयाब रहे, लेकिन यासिर कबूल करेंगे इन दोनों चौकों को जिसके जरिए से रावलपिंडी ने अपने कदम जमाने की कोशिश की है। अच्छा मुकाबला होता नजर आ रहा है। ये रावलपिंडी की वो टीम है जिसने अब तक टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं हारा है। इसके कप्तान है शादाब, जबकि दूसरी जाने फाटा को फतह की जरूरत है, पहले मैच में शिकस्त खा गए थे। काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं शादाब के साथ। फील्डिंग कोच जवाद हमीद हैं, ये खुद भी ऑफ स्पिनर थे, लेकिन शादाब को अच्छा लगा देख के। जब उनसे बात हुई मैच से पहले तो बहुत वो कीन थे कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहते हैं और अपना जो एक्सपीरियंस है वो यंगस्टर्स को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। इस चीज़ की अहमियत को उन्होंने माना और अपनी फुल कमिटमेंट के साथ खेलते हैं। आज हमने देखा फील्ड में भी वो लाजवाब थे, बहुत क्रूशल खुशदिल शाह का रन आउट उन्होंने हासिल किया टिपिकल शादाब स्टाइल में। अच्छा लगता है इस तरह बड़े प्लेयर्स को आकर डोमेस्टिक खेलते देखकर। ऊंचा उठाकर खेलने के लिए गए, उमर अमीन को हाथ खोलने का मौका मिला है। गो के गेंद जिस्म से बहुत दूर थी, लेकिन अपनी लंबी रीच का पूरा फायदा उठाया चौके के लिए। लेफ्ट हैंडर्स की जो ग्रेस है उसका जवाब नहीं। हालांकि बिल्कुल भी ये पैर बॉल की पिच तक नहीं पहुंचा, सिर्फ हाथों का इस्तेमाल, लेकिन जो बैट फ्लो में खूबसूरती है और जो टाइमिंग और पॉइज, एक देखने वाला शॉट था उमर अमीन का। उनको भी इस बाउंड्री की जरूरत थी। ये सुपर सैटरडे है और यहाँ नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में सिर्फ आज का ये वाहिद मुकाबला नहीं है। सियालकोट की टीम उतरने वाली है अब से कुछ देर में एबटाबाद के खिलाफ। सुपर 8 के मराहल हैं जिसमें हर टीम को एक्शन में आना है, सिर्फ एक दिन का बीच में गैप है और उसके अलावा अपने आप को रेडी करना है अगले मैच के लिए। ये मुकाबला खेला गया लाहौर वाइट्स और लाहौर ब्लूज़ के दरमियान, जहां पर लाहौर वाइट्स जीतने में कामयाब रही है 5 विकेट से, जिसके लिए तैयब ताहिर ने आज टॉप स्कोर किया, 67 रन बनाए। साथ नवीद 2 विकेट्स हासिल करने में कामयाब किया। रिडीम रहे, दोनों कल लाहौर की टीमें हारी थी। और यहाँ हासिल हो गई शॉर्ट बॉल जिसका पूरा फायदा उठाया उमर अमीन ने। पिछला ओवर शानदार करते करते अपनी लेंथ में चूक गए और उमर अमीन ने शानदार शॉट खेला पहले छक्के के लिए। वाह वाह वाह, क्या शॉट था। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने जोर लगाया, एफर्टलेस। और एक मरतबा फिर वो जो स्टाइल और ग्रेस है लेफ्ट हैंडर का, वो समहाउ आपको राइट हैंडर में नहीं नजर आता। जो बैट स्विंग लाजवाब और बल्ले के बीचों बीच आप देखें, जब बॉल बल्ले से टकराई तो उमर को मालूम था कि ये 6 रन हो जाएंगे। एफर्टलेस ईज एंड ग्रेस। उमर अमीन भी कोई 2-4 बरस की बात नहीं, वैसे निस्फ सदी का किस्सा भी नहीं है, लेकिन ये भी जब पाकिस्तानी टीम के लिए भी हम फेमसली जानते हैं कि परफॉर्म भी कर चुके हैं और इब्तिदा में ये एक फ्यूचर लीडरशिप को पोटेंशियल के तौर पर भी डिस्कस किए जा रहे थे। लेकिन अभी भी इनकी अगर आप ओवरऑल फिटनेस को या इन्वॉल्वमेंट को देखें तो हर फॉर्मेट ऑफ द गेम में डोमेस्टिक में वो खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं। और जहाँ पर ये आप शादाब या नवाज़ की वापसी का ऐलान कर रहे थे और उसका उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया, वहाँ पर उमर अमीन की कमिटमेंट भी मेरे ख्याल से अब तक बड़ी अप्रिशिएट है। जी बिल्कुल, और उनकी करियर को एक नया लीज भी मिला। इस साल काउंटी क्रिकेट खेली उन्होंने पहली मरतबा और वो भी अच्छा एक्सपीरियंस उनके लिए साबित हुआ डोमेस्टिक में भी। और सिर्फ ये नहीं कि वो खेलते हैं, जब भी हम उन्हें देखते हैं वो अपना 100% देते हैं, चाहे वो फील्ड में हो, चाहे वो कप्तानी कर रहे हो। एक आइडियल रोल मॉडल प्रोफेशनल की तरह है उमर अमीन। अपनी फिटनेस, डाइट, न्यूट्रिशन, हर चीज़ का प्रॉपर ख्याल रखते हैं। चार ओवर्स के बाद रावलपिंडी 27 पर 1।
That's the comparison. FATA were 28 for 1. This one behind, 27 for 1. Asif Afridi now. Slashed, picked up nicely. And it will sail away into the stands. That's the welcome Yasir has provided to Asif. Just waiting for that length. It's a bit of a loosener from Asif. Down on one knee. Look at that. Perfect slog with a full follow through. Brilliant connection. Straight away changes in the field and maybe in planning as well. It's not a big turner of the ball, Asif. Just like to use the angles. Just one hiccup for Rawalpindi. Already on 33, 4.1 overs. Yasir and Umar. He's got plenty of batting to come. FATA has done well in terms of batting, but now they have to concentrate on the bowling. Have to come with plan against the opposition and the batters. Still looking for the ball in the stands, I guess. Yeah, just jogging his way. I don't think there's any open gate in the stands to grab that ball. Just the length allowed him to free the arms right out of the middle of the bat. Again down on one knee, and this time it's gone further. Some more fetching around to be done. Good luck is that the man who threw the ball for us earlier is still around. That was a clean hit. That sound, that was perfect, right out of the middle of the bat. It was clearer, timed perfectly and went farther away. Again, the length they need to think about, Asif need to think about, because he can slog for sure, Yasir. He's searching for these deliveries. Wow, Asif Afridi usually is very accurate and well respected around. When he holds the ball, he's been greeted with 2 maximums. This time sweeps and does well. One bounce into the fence. No regard for the senior bowler. This is some clean hitting here from the Pindi boys. He's targeting Asif for sure, Yasir. Relying on slog sweeps. And this time, planting his foot across the line. And played it behind square sweetly. Wrist coming into play. He's all over the place right now, Asif. That length would work. He's been a touch fuller on 3 occasions and he's conceded 16 runs. He's smart enough to get things back in control. That has helped for this power play to raise to 44. It was 44 for 2 in 6 overs for FATA. This onslaught has helped them to get to 44 already. Make that 45, and with that single, number of runs in the over are now 18. It's 45 for 1. Having some word with Khushdil. I'm not sure what those are, because probably Khushdil is
not happy, and he should have word with him. He's an experienced campaigner, Asif, and you expect him to do a lot better. Conceding 18 in the first over. Quite content, having a word or two with the youngsters. That's what you can get when you've got your experienced Pakistan players around in the dugout. You can discuss all the matters with him. Akif Javed now with the ball. He's a decent left-arm pacer. It's quite animated, Kushtil Shah. We saw that earlier with the misfield. Actually, it wasn't a misfield. The player did not attempt the catch. He was very angry. And now with the previous over, with one of the senior campaigners of Asif Afridi, went for 18. They need to do some reconciliation. Gone over, shot fine. Bad ball, put away. The kind of form Yasir is in, he will not spare you. 50 up for Rawalpindi, already inside the power play. Erring in the line, Akif, this time. Just helping on its way, Yasir. Didn't have to do much. And that's exactly what Kushdil is having a word with. And these are not the lines. You managed to get wickets. That's what they need. FATA leaking runs very easily here. Wow. Straight as an arrow, gun barrel straight, whatever you want to call it. Clean heading through the line. It's effortless batting by Yasir. He's just hanging in the crease. Anything he's been pitched up, he's going after it. No problems in going for those boundaries. Have a look at that. It's easily done over the head of the bowler. Again, the length allowing him to play that shot. They need to think quickly, FATA. Otherwise, this game is running away from them. I think he's missed out. Missed out on an opportunity. Yasir again on the leg stump, on the pads. Could have easily picked that up over shot fine. Yeah, he was in through the shot way early. Probably just eyed that line. There was a little bit change of pace, I reckon. Lucky no hiccups on the other end. Umar Amin back in the blocks quickly. Bad ball, and it's got the right treatment. Some really ordinary bowling from Akif Javed in this very first over. He's all over the place, and he's being handled properly by Yasir. Not sure what the ploy here is. You've got the new ball. You've seen that if you pitch and hit the hard length, that's where the trouble might come in for Yasir. But these are easy pickings, just hanging in his crease. Got a bit of extra bounce as well and helped it on its way for another maximum. Another expensive over on the expense of Akif. More runs here. This might go to the boundary. It's timed well. Oh, he's flicked it back. We'll probably have a second look. They've come back nice and easy for 3. We'll wait for the official call, but either way, even if it's not a boundary, this is now the highest power play score by Rawalpindi. Previous was 61 against Bahawalpur. And
We'll see if this is a boundary or not. Probably looks good, but another angle will clearly show where his left hand is. Is it in touch with that boundary skirting while he's in contact with the ball? Seems like he's done well. Khushdil almost kicked it back out of the ground. Well, if it's a 3, then it's 36 runs in the last 2 overs, Marina. And this over would show 18. It's not a boundary. So 63 for 1 after the power play. Yeah, last 2 overs, both went for 18. One from Akif and one from Asif. The ballers you expect to do a lot better. And they were taken to cleaners by Yasser in particular. Umar Amin just hanging on the other end. Just ruining the show. Captain himself has taken the responsibility now. Khushdil Shah with the ball. Captain into the attack now, Khushdil Shah. Single of the first ball. Some serious momentum that Rawalpindi has gained in the power play, courtesy Yasser's 45 of 20. You've got to find a way to stem the flow of runs. You can't just give away singles. That wasn't far away from Khushdil himself. And he's not having a serious follow through. He's just walking and bowling left arm spin. A little quick through the air, firing it into the pads. Has to be very immaculate with his line and length, especially against Yasser, because he loves to slog spinners. He'll be happy doing this. Umar Amin giving strike back to Yasser, who's on 46 now of just 21 deliveries. That was a very slower delivery from Khushdil. He's mixing it up nicely. The variation of pace. He's trying to unsettle Yasser. Rawalpindi having a 63 for 1 power play. They lost the wicket early, and then it's been all about Yasser Khan, how he's been taking on the bowlers, whether it's the faster ones or the spinners. And with some experience of Umar, I mean, he's got a sane partner at the other end. Taken on Asif Afridi earlier on at the start of his over, and then Akif Javed was put away for a couple of boundaries and a maximum, racing the score to 60 plus in the power play. And because of that, their run rate now is 9.71. Easy one. Mind you that Rawalpindi have already won their first game in the Super 8 yesterday. FATA lost their first game. That was also yesterday against Sialkot. So it's more important that FATA keeps themselves in the race and get their first 2 points immediately in this round for the semi-finals. Chips it in the air and just lands between the two fielders in the deep. It was well timed against the spinner, almost went all the way.
You'll see a lot of risk coming into play when Umar Amin is batting. It's nice to come down the track, flick it through the onside as well as to the offside. But right now it's all about Yasir, who's on 48. Easy one, easy one, easy one. Asif has changed his ends now. Wait, Asif bhai. Bowling from the pavilion end. Got away with that. It's a full toss. How 2 good overs can actually just put a lot of pressure on the fielding side immediately. You feel at ease as a batting unit. Now you can push the ball around and hit the odd bat delivery for a boundary. That's what we know about Asif Afridi. He can keep it very tight lines within the stumps. Lengths are immaculate. Just looked very out of sorts from that end. Maybe taken by surprise, and the first 2 balls hit for 2 sixes. Yeah, there you go. Just won't even allow a single. He's got a well spread out onside field. 8 gone, 72 for 1. और आउट होने का खतरा था, लेकिन कैच ड्रॉप हो गया। टर्निंग मोमेंट बन सकता था। आकिफ जावेद ने सब कुछ ठीक कर लिया था, लेकिन बस हाथ बंद करने में कामयाब ना हो सके। बड़ी लाइफ मिली उमर अमीन और रावलपिंडी को। ये तो नहीं करना है, और ये पहली बार नहीं है कि कैच छूटा है फाटा के फील्डर से। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था। इससे पहले एक चांस क्रिएट हुआ था थर्ड पे, वो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इस लेवल पे अकील ऐसे कैच आप नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप छोड़ते रहेंगे तो आप मैच को भी छोड़ना होगा। ऐसी शॉर्ट बॉल ऑफर करके उन्होंने सब कुछ ठीक कर लिया था। चूक भी गए थे उमर अमीन, और यहाँ पर गो के उनके पास मौका मौजूद था कि वो बड़ी हिट के लिए जाते, लेकिन उन्होंने फ्लैट खेलने की कोशिश की। पूरी कुव्वत और एलिवेशन देखकर उन्होंने उसको क्लियर करने के लिए नहीं जा सके थे। अपने पीछे की जाने मूव कर रहे थे, बैक पैडल करते हुए उन्होंने इसको करने की कोशिश की, और आखिरी लम्हात में लगता है कि आंखें हटा ली थी। और यही बातों ही बातों में कैच छूटने के असना में 50 रन मुकम्मल कर लिए हैं यासिर ने। शानदार इनिंग के लिए, धुआंधार इनिंग के लिए, और ऐसी ही इनिंग की जरूरत थी। रावलपिंडी की टीम को एक अच्छा स्टार्ट चाहिए था। 250 अपने करियर में, 26 की एवरेज, स्ट्राइक रेट बड़ी इंप्रेसिव है 138 की। और अखिल जो इंपॉर्टेंट था कैच पकड़ना, इसलिए कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड 2 बैटर्स बैटिंग कर रहे हैं और 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलिंग कर रहे हैं। इसलिए अगर उमर अमीन आउट होते तो एक राइट हैंडर डेफिनेटली आता, हैदर अली आते या शादाब आते, मुबस्सिर आते, या हो सकता है नवाज को भेजते, लेकिन राइट हैंडर का ज्यादा चांस था, इसलिए भी वो कैच लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यस, ये भारी रहेगा ओवर खुशदिल पे और साथ फील्डर पे भी, लेकिन 9 ओवर मुकम्मल हुए, 76 पे। दूसरे 50 मुकम्मल किए यासिर ने इस टूर्नामेंट में। महज 27 गेंदों पर वो इस 50 के सफर को मुकम्मल करने में कामयाब रहे हैं। अब तक 5 चौके और 3 छक्के लगाए। ये 2 चौकों के साथ उन्होंने शुरुआत की थी। स्लाइड वेरी किया था अपनी लेंथ को, लेकिन दोनों मरतबा उन्होंने डिस्पैच किया। फिर ऑन साइड का इंतखाब किया बड़े शॉट्स के लिए, फ्रंट ऑफ स्क्वायर और बिहाइंड द स्क्वायर, और खराब गेंद का भी भरपूर फायदा उठाया। और अभी भी कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तरोताज़ा हैं, 250 मुकम्मल कर चुके हैं। बनू से ताल्लुक़ रखने वाले राइट हैंडर अटैकिंग बैट्समैन रावलपिंडी के लिए उनको मौका मिला खेलने का, और उन्होंने दोनों हाथों से ग्रैब किया। और एक ऐसी टीम में जिसमें शादाब, नवाज, हैदर, ये तमाम इंक्लूडिंग उमर अमीन मौजूद हों, इन्होंने शान अब तक बैटिंग की है। और इन 250s के साथ जो अपनी टीम की
फतह की लड़ी में एक और उन्होंने अहम कामयाबी को परो दिया। टॉस ऑफर कर दिया है, बड़ा लंबा चेस है, डाइव करेंगे लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे। स्ट्रेट खेले और भरपूर कुव्वत के साथ उमर अमीन ड्रॉप कैच के बाद ज्यादा गरज रहे हैं और अब बरस भी रहे हैं। ये आसान हो जाता है जब आप एक बैटर का, इतनी क्वालिटी बैटर का कैच छोड़ते हैं और अगला ही बॉल फुल टॉस कर देते हैं। एक तो वैसे ही दिल बड़ा है और ऊपर से क्वालिटी बहुत है। 19 गेंदों के बाद बाउंड्री को डिस्पैच किया था और अब ये एक और बाउंड्री भी मिल जाएगी। स्टैंड एंड डिलीवर नेम ऑफ द गेम उमर अमीन के लिए। जोन में गेंद आ गई और पिछले चौके को बैक किया इस एक और चौके के साथ। ये आसानी से शॉट खेलेंगे, गैप बहुत अच्छे तरीके से तलाश किया उमर अमीन ने। ये बहुत ही स्टाइलिश बैटर है और ये कैच बहुत महंगा साबित होने वाला है फाटा के लिए। फुल टॉसेस का पूरा फायदा उठा रहे हैं और अब अपने कदमों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं आज़ादी के साथ। आधा सफर उन्होंने ओवर्स की तादाद के लिहाज से भी मुकम्मल कर लिया है। रन रेट के ऊपर भी वो सही जगह से प्रवास कर रहे हैं और उसके साथ साथ सिर्फ एक विकेट गिरी है और ये देखते हुए अब वो फ़ायदा उठा सकते हैं, जबकि यासिर जो कि पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं शॉर्ट बॉलों का, उनको भी रन बनाने का मौका मिलेगा। जहां पर एंगल बड़ा नैरो था आसिफ के लिए और उन्होंने आखिर में थ्रो ना करने का फैसला किया। अकील अब लगता है कि शायद चांस लेना होगा खुशदिल शाह को एक ऑफ स्पिनर से। रियाज खान है अंडर 21, वो ऑफ स्पिन कर लेते हैं। एजाज खान भी ऑफ स्पिन कर लेते हैं क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उमर अमीन बहुत अच्छी फॉर्म में है। और अब इस मरतबा की हालत खेलने के लिए चले गए थे, एच हुआ और एक मरतबा फिर पीछे भागे, साथ साथ ही भाग रहे हैं बल्कि इरफान, लेकिन धकेलने में कामयाब। महंगा ओवर गया, आधे ओवर अपने अख्तिताम को पहुंचे। अपनी डगर पर रवा है रावलपिंडी 89 पे। ये सेम स्टेज पे अकील फाटा 66 पे 3 थे, रावलपिंडी भी 79 पे 3 हो सकते थे अगर कैचेस लिए गए होते तो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, एक ही विकेट गिरी है। और दोनों ही बैटर वेल सेट हैं और ये दोनों ऐसे बैटर हैं कि जो तेज खेलना पसंद करते हैं। उमर अमीन ने हालिया ही में ये डेवलप किए अपने अंदर, ये आदात के बड़े शॉट्स खेले हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं। और यहाँ पे पार्टनरशिप को तोड़ना होगा जो कि 88 रन पर पहुंच गई है, अदरवाइज तो मैच निकल जाएगा हाथ से। अपील कर रहे हैं, जोरदार कर रहे हैं और अंपायर को मुतासिर ना कर पाए। राशिद रियाज के ख्याल के मुताबिक गेंद एक मरतबा फिर शायद विद द एंगल स्टंप्स को छोड़ते हुए चले जाते हैं। बज़ाहिर तो स्टंप्स के बिल्कुल सामने थे उमर। थोड़ा स्पिन हुआ है लेकिन टच एंड गो है ये, शायद लेग स्टंप को क्लिप करती लेकिन मार्जिन दे सकते हैं इस डिसीजन पे। पांच बॉलर आजमाए अब तक खुशदिल शाह ने खुद के समेत, और अब चूंकि विकेट की ज़रूरत है हो सकता है कि वो दूसरे एंड से दोबारा तब्दीली करने का फैसला करें। आसिफ आफरीदी का एक ओवर बाकी है, 35 रन दे चुके हैं और कंफर्टेबल इनके खिलाफ दोनों राइट और लेफ्ट हैंड के ये बैट्समैन अपनी मर्जी के मुताबिक वो एक्सप्लॉइट करते दिखाई दे रहे हैं। गो कि 19 गेंदों का एक खामोश पीरियड ज़रूर आया था इस इनिंग्स में, लेकिन उसके बावजूद उस पर रिकवर किया। सीधा खेलने के लिए गए, अपना हाथ निकाला था खुशदिल शाह ने, लेकिन गेंद के करीब ना पहुंच पाए, सिर्फ एक रन मिलेगा। या मसला अब यही है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड बैटर्स हैं और दो लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलिंग कर रहे हैं और खुशदिल ने अच्छी बॉलिंग की है, रन्स नहीं दिए हैं, लेकिन विकेट्स का कॉलम खाली है। जब तक आप विकेट हासिल नहीं करेंगे रन्स रोकना इतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आप विकेट्स चाहिए। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी पेस से बॉलिंग कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, हवा दे रहे हैं बॉल को, स्लो कर रहे हैं। 11 ओवर्स के बाद 92 पर 1। साल के वो दिन है अली, सबसे पहले जल्दी सूरज शुरू होता है आजकल, और ऐसे में तो जब सनलाइट कम हो अपने आप को तरोताज़ा रखने के लिए कुछ छक्के चौके और साथ साथ चाय भी चाहिए होती है। ऑलमोस्ट एग्जैक्टली ये वक्त है जब सूरज डूब रहा है और टपाल टी से बड़ी खामोशी के साथ मैच पे और इधर उधर भी निगाहें रखी हुई हैं। हर एक की निगाह मुख्तलिफ जगहों पे ज़रूर है, लेकिन साथ साथ तरोताज़ा चाय के साथ।
डबल हेडर है सुपर सैटरडे में। ये आने वाला स्टार स्टडीड सियालकोट का मुकाबला होने वाला है एबटाबाद से, जहां पर यासिर शाह की टीम उतरेगी, फखर जमान उसका हिस्सा है। एक बड़ा मुकाबला होने की तवक्को, लेकिन इससे पहले फाटा जिन्होंने अच्छी शुरुआत की थी अपनी बॉलिंग से, खासतौर पर शाहिद ने पहले 6 पर 18 बना के अपने बैटिंग की पार दिखाई और उसके बाद मूवमेंट से मुतासर किया, एक विकेट भी हासिल की। लेकिन उसके बाद से इनके स्पिनर्स अब तक लिव अप नहीं कर पाए और तवक्कात के मुताबिक आसिफ अफरीदी को रिप्लेस कर दिया है पेविलियन एंड से। आकिब जावेद खुद भी महंगे रहे थे 3 ओवर में 35 रन देकर, लेकिन उनको शायद ब्लॉक होल में गेंद करने की जरूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ यासिर ऑल सेट हैं बड़े टोटल की जानिब। अब अपने सारे ही बॉलर्स को आजमाना चाह रहे हैं कोशिश के कहीं से कोई विकेट हासिल करके दे। आकिफ के पास वो अपॉर्चुनिटी है, ऑल्दो पहला ओवर काफ़ी महंगा गया था जिसमें 18 रन आए थे, लेकिन यही वो बॉलर हैं जो विकेट लेके दे सकते हैं। ये लंबे कद के हैं, अच्छा एक्शन है, हयाम एक्शन है। 2019 में पहली बार इनको मैंने देखा था नेशनल T20 में, बड़े इंप्रेसिव स्टार्ट था इनके करियर का, लेकिन उस तरीके से फ्लरिश नहीं हुआ इनका करियर जितना पोटेंशियल इनमें मौजूद था। ये ब्लॉक होल में ऐसी कई गेंदें चाहिए होंगी जिसके पीछे पड़े थे और इसके साथ रन आउट करने के लिए भी मोमेंट जनरेट करने की कोशिश की थी, लेकिन एक रन बना पाए और अच्छी गेंद पे भी चूक गए ओवर स्टेपिंग करके। आकिफ जावेद 2 ओवर में 35 रन देने के बाद जिस स्टार्ट की जरूरत थी अपने इस ओवर में, वो उसके शान निशान नहीं है। बड़ा मसला है फेटा के लिए अली। यार ये किसी को कसूरवार ठहरा नहीं सकते। आप कैचेस छोड़ेंगे, इस तरह की नो बॉल्स करेंगे, आसानी से रन्स दे देंगे, फील्डिंग खराब करेंगे, तो कितना ही आप स्कोर कर लें वो डिफेंड नहीं कर पाएंगे। विकेट्स लेना थी, चांसेस क्रिएट हुए, लेकिन ऐसा ना हो सका। और दूसरी जानिब दाद देनी होगी उमर अमीन और यासिर दोनों की, जिन्होंने कैपिटलाइज किया है उन अपॉर्चुनिटीज को और अब अपनी टीम को बहुत ही मुस्तहकम पोजीशन में ले आए हैं। फ्री हिट पे मौका मिला हाथ खोलने का और खूब मिला, ऑलमोस्ट पहुंच चुकी थी फील्डर के सर के ऊपर से बाउंड्री के करीब, लेकिन पीछे से बैकअप करने के लिए मौजूद थे। आप लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के इनके कद काट की बात कर रहे थे, तो जो आपको एक अज्जार चाहिए होते हैं खासतौर पर तेज गेंद करने के लिए, लेफ्ट आर्म जो इन स्विंग एंड डिलीवरी जो कि शाहिद अफरीदी ने शोहरत हासिल की थी, उसके बाद आप या उससे पहले भी आप कई बॉलर्स को इस अंदाज की परफॉर्मेंस खासतौर पर बॉलिंग की शुरुआत करते हुए नई गेंद के साथ करते हुए दिखाई देते हैं। बिल्ट भी इनका अच्छा है, कद काट भी ज़बरदस्त है। बॉलिंग एक्शन में शायद आपको वो रिदमिक मूवमेंट्स नज़र नहीं आती हैं जो कि मिचेल स्टार्क या शाहिद अफरीदी जैसे बॉलर्स में मौजूद हों। तो हम श्योर कि अभी भी जवान है और आगे इनके पास मौके मौजूद होंगे कमबैक करने के। PSL में फीचर कर चुके हैं और टॉप क्वालिटी क्रिकेट खेलने के बाद वैसे भी आप एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती हैं। वैसे मुझे किसी ने याद कराया, दिखने में भी मिचेल स्टार्क से ज़्यादा डिफरेंट नहीं लगते हैं। जो उनकी मुशाबियत है वो हर तरफ से मौजूद है। और वो जो आपको इब्तिदा में ये जो 20 से लेके शायद 26-27 ईयर्स तक का टाइम पीरियड होता है जिसमें आप अपने पीक पे बॉलिंग करते हैं, आपकी बॉडी बिल्ड होती है, आपके पास पेस सबसे ज़बरदस्त होता है, यही मोमेंट होते हैं शायद आपको सबसे ज़्यादा कामयाबी हासिल करने के लिए किसी फास्ट बॉलर के पास। एक और खराब फील्डिंग, आसानी से रन्स देते जा रहे हैं। ऐसे तो वकील आप मिचेल स्टार्क बन जाएं, आप शाहीन अफरीदी बन जाएं, अगर फील्डर्स का साथ मौजूद नहीं होगा तो वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे बॉलर। अब से 73 रन हैं 50 बॉलों पे, 9 विकेट्स हैं। अथॉरिटेटिव ये विन होगी अगर यहाँ पे ये जीतते हैं रावलपिंडी, जैसा कि पेशावर कर रही है। उनको कौन रोकेगा, सवाल ये है। आज कराची वाइट्स को भी उन्होंने बड़े मार्जिन से मैच हराया, कल लाहौर को भी उन्होंने बुरे तरीके से मैच हराया। रावलपिंडी की टीम उनको शायद टक्कर दे। और यहाँ पे टक्कर देने की कोशिश की है, कदमों का इस्तेमाल करके यासिर ने, और एक और कैच ड्रॉप हो गया। सलमान थे आगे की जानिब आए थे, सारा काम ठीक कर चुके थे, लेकिन एक मरतबा फिर गेंद हाथों में आने के बाद ऐसे स्प्रिंग की तरह उछली कि जैसे कभी भी उनके हाथों में रुकने के लिए बनी ही ना थी। एक और चांस रावलपिंडी के लिए और एक और हार्ट ब्रेक फाटा के लिए। जहाँ दूर रही है खुशदिल से इस वक्त, क्योंकि ये भी बहुत ही आसान कैच था। सलमान ने बैटिंग बहुत अच्छी की, लेकिन अगर आप बैटिंग के साथ ऐसी फील्डिंग करेंगे तो आप तरक्की नहीं कर पाएंगे।
जिस लेवल की भी आप क्रिकेट खेल लीजिए, आपको तीनों शोबों में ही अच्छा करना है। अगर आप रन्स करेंगे, फील्डिंग में ऐसे कैचेस छोड़ देंगे तो टीम को आगे लगवा देंगे, और ऐसा ही हो रहा है। जहां पे विकेट्स की तलाश है वहां पे चांसेस दिए जा रहे हैं। और फ्रस्ट्रेटेड थे आकिफ, जो कि पॉसिबली यॉर्कर की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बेपनाह चूक गए और उनके ज़ख्मों में नमक छिड़कते हुए चौका, और चौके के साथ 100 भी मुकम्मल। अब क्या करे बॉलर, यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन है। फुल टॉस किया, थर्ड की जानिब 4 रन हासिल करेंगे। हर चीज ही रावलपिंडी की फेवर में इस वक्त जा रही है। फ्रस्ट्रेशन, और जायज फ्रस्ट्रेशन है ये आकिफ के बाद। 102 पर 1। Since that power play onslaught, has just been Rawalpindi all through in this innings up till now with the bat. They haven't really let that run rate come down below 8. Still at almost 8.5. And they've already got 103. Which means it's within their reach. 66 or 47 from here on, and 9 wickets in hand. And what a batting display from both Umar Amin and Yasir Khan. You can see it to the bottom left of your screen with the individual scores, and to the bottom right of the equation. FATA has not found an answer to get a breakthrough. There you go. Again, using the long handle, and it's gone all the way. It's just been easy pickings. Yasir and Umar both have looked in very sublime touch. Very well done. That would be six number 4 from Yasir's bat. Again, bad line. This is what we're talking about. It's just been leg stump line, whether it's Akif Javed, whether you talk about any bowler. Akif has been struggling a lot. This is Shahid. This one, once again, a full toss on the leg side and taken advantage of by the batter, and it's sheer frustration as we see Pindi dominate the FATA bowling, and Yasir and Umar Amin both taking the bowlers to the cleaners, and they've been provided the opportunities as well to do so. Wow, that's in the air again and will go over. He's just playing a video game here. Yes, that's what you call toying with the bowling. And Yasir is just playing according to his will. Wherever the ball is, when it comes to him, it just strikes the middle of his bat and goes for another huge 6. So the last few deliveries have been out of sheer frustration. The bowlers and the fielders are left at the mercy of Yasir at the moment, who is on 79 of 43, playing a great knock and taking his side quickly towards the target. I think he's hitting the ball very cleanly. He doesn't need to do that. Absolutely. When the old cricket is working, you don't need the modern stuff. You can hit 6s straight down the ground, over cow corner, hitting everywhere in front of the pitch. Then you don't need to be fancy like this. It just looks risky, and yes, it is an option, but not when everything else is working.
It's already 2 sixes and a 4 of this over. So he's got 17 runs. Yeah, that's more like it. He'll get a run and he'll keep strike. 121 for 1. These are the 3 hits in that previous over. Cow corner, bad ball, pass fine leg, and maximum at square leg. So the fast bowlers have been put away. Asif Afridi was greeted with 2 maximums in the very first over. Akif Javed was greeted with a 19-20 in the first over. You can see there. Asif 3 was none for 35. Pulled things back. Akif Javed 2 was none for 29. Shahid just now was hit away with quite a few runs. 3 for 33. Or rather 3 overs, 1 for 33. It's been on the higher side, which has helped the run rate to be at 9.3. Easy one. Good ball, yaar. Good ball. Cut out. Back up. Hardly seen any dot balls in this innings, Good start. though there are 25 of them. Let's see how they deal with Azaz Khan in his first over. Into the 80s, Yasser. Just 46 deliveries. Khurshid is looking for answers. 81 of 46. Launches that into the evening skies. Another maximum. Why would he spare anyone? He hasn't allowed the faster men, and neither would he allow the spinners. Well, Yasser is rocketing his way to what could be a great 100. And he's already on 87. And this one, again, in his zone. And he doesn't need to do much. Just down on one knee and a great swing of the bat. And then he watches it sail over the boundary for another 6. And this one is towards the short third man. Just a dot ball. On a pitch like this, what Azaz is presenting to the batter is just equivalent to a free hit. And to a batter who is in the mood and playing as good as Yasser is, then it will be hard to stop him. Voila. Let's hope he can finish well, Azaz Khan. He's given 8. Yes, there's a maximum, but he's bowled good 4 other deliveries. Yeah, he's done well. 8 of the over. 14 gone, 129 for 1. Super 8 stage, other games that have been completed in the day. Lahore versus Lahore, the Blues and Whites. And Lahore Whites have won this by 5 wickets. So, yeah, you would expect that. Lahore being a little, Whites being a little more serious side. Imran Doga playing in place of Ahmed Shahzad today. Getting a 45. Tayyib Tahir higher score of 67 not out. And Peshawar just being rampant, beating Karachi Whites by 56 runs margin. They can push for 2. They've got that confidence and completed that with ease. Yes, Umar Amin this time using his feet, wanted to go for a big one, but Khushdil Shah
He's a smart operator, so he followed him. In the end, an easy 2 for Umar Amin. This big hitting and 6 hitting at times, Sikandar, it's viral. So it's hard to watch the other guy going so fast. And on the other end, you also want to replicate what is going on. So match summary from Peshawar, who won it easily. This one is over mid-wicket, but will be cut off. One only. Hits it hard and down the ground for another boundary. It just seems unstoppable today. Into the 90s now, Yasir Khan. And the score is racing towards that target of 169. Yes, down the ground this time. So Yasir is showing us a full array of strokes. Hitting the ball across the boundary everywhere. It's a wild swing and a slog attempted there by Yasir. He doesn't have any nervous 90s. He still wants to swing hard. There again. He hasn't got hold of it, but he's got enough power to clear it. Make that 97, and that would be number 7 from his bat. Yes, and it's the end of 15 overs. Pindi moved to 142 for 1. And in the replay, we can see that it's pretty sure that the batter has decided that he is going after everything now. So this one was swept over cow corner for another 6. There comes a time when the fielding captain just seems to be running out of answers. When the batter is attacking every single bowler he's offering, then it's just about sitting back and enjoying some great hitting. Umar Amin has shown his experience by just locking one end, scoring 41 of 33 in a nice and quiet way, and allowing Yasir to just free his arms. He's left the side with 26 runs to win of 29 balls. The way he's going, he might not need 29 balls. Moves to 98. Yes, this is much more sensible. It's less than run a ball required now. And Yasir in the last over was like he wanted his 100 in that particular over. He went after everything. I'm sure that Yasir is waiting for one ball that will be in his zone to go after. It's on to 99 now. Previous hundreds in the national T20 this year have been from Zishan Malik, also from Rawalpindi, opened with him. 67 balls for his 100, and Saibzada Farhan from Peshawar used 51 balls to get there. This would be the quickest, or rather second best. Singles are also not being stopped here, but the field is inside the 30-yard circle. Well, it's less than run a ball. Will this fielding side consider having one more fielder in the ring, or maybe a couple, to see if they can get a wicket, or will they allow Yasir an easy route to the 100? Oh, it was Zapish, but he's got the 100. Much deserved 100. What a knock from him. Just 56 balls, and he's single-handedly taken the side close to a win with 8 boundaries and 7 sixes. Yes, great scenes there, and you can see the jubilation, the satisfaction on his face, and there it is, signaling to the dressing room.
something with his hands, and obviously he's ecstatic. He's very happy with his performance, what he has achieved. And we can see the dressing room also very excited. And Pindi, in this Super 8s, they have announced themselves as a very tough side. And courtesy one of the openers getting 100 in the previous game, and now he is the man, Yasir Khan, getting another 100. So for any team, if the openers have got hundreds in same competition, it speaks volume of the kind of form that they are in. And the hundreds, the way they have been scored, obviously show the amount of domination that they have brought in. Once again, that's the scene, how happy he was, how jubilant and excited after he's done that. सौ रन 56 बॉलों पे यासिर की बेहतरीन इनिंग, एक और बेहतरीन शॉट ऑल द वे, ये बहुत ही बड़ा छक्का, ये छत पे गया है बॉल। और जब एक बॉय बैटर 100 पे खेल रहा हो तो यहाँ बॉल आप नहीं कर सकते हैं। ये इस इनिंग का 8वां छक्का यासिर के बल्ले से। शाह फैसल खुश हैं। पिंडी की टीम छा गई है और यासिर छा गए हैं। ये पार्टनरशिप तो ऐसा लग रहा है जैसे मैच को वन साइडेड कर गई है। क्या लाजवाब स्ट्रोक था, बहुत ही जबरदस्त आवाज आई बल्ले से और गेंद जाती ही चली गई, सीधी छत पे जाके टकराई आसिफ इकबाल इनक्लोजर के ऊपर। और अब वक्त लगेगा इस गेंद को वापस आने में। इस टूर्नामेंट का शायद सबसे बड़ा छक्का था अली ये। जी हाँ बिलाशुबा, 192 रन की ये पार्टनरशिप है। 152 रन 88 बॉलों पे, किसी भी विकेट की सबसे बड़ी पार्टनरशिप। और इस छक्के का लुत्फ दोबारा हो जाए अगर आप टपाल टी लाउंज में हैं और टपाल टी मोमेंट एंजॉय कर रहे हैं। जबरदस्त मौसम, जबरदस्त शाम, जबरदस्त क्रिकेट और जबरदस्त चाय, जबरदस्त कमेंट्री भी। सिर्फ 15 रन दूर है 23 बॉलों पे रावलपिंडी। बहुत ही कंप्लीट परफॉर्मेंस, लेकिन काफी कुछ सोचना होगा फाटा को अपनी फील्डिंग के बारे में, अपनी कैचिंग के बारे में। एक और बड़ा शॉट, सीधा फील्डर मौजूद है, एक ही रन बनेगा। कितनी जोर से शॉट मारते हैं, तगड़ा खेलते हैं यासिर। और आप अली, आप खुद तो बैटिंग करते रहे, लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर आप बॉलर हो और आपको ऐसा शॉट लगे जो स्टेडियम की छत पे जा गिरे तो आप क्या सोच रहे होंगे। आप सोचें कि शायद ये जमीन फट जाए और मैं इसमें घुस जाऊं। बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है इतना बड़ा छक्का लगने पर। नहीं फैसल, मैं नहीं ये सोचना चाहता हूं कि मैं फास्ट बॉलर होता, क्योंकि मुश्किल आर्ट है ये, और ऊपर से ऐसी बैटिंग हो रही है और T20 में तो मजीद मुश्किल हो जाता है बॉलर के लिए। आप ये कहकर अपने भाई को नाराज तो नहीं कर रहे, द ग्रेट वकार यूनुस? मेरी क्या मजाल, मैं सिर्फ अपने आप की मजलूमियत शो कर रहा हूँ कि मेरे लिए ये आर्ट बहुत मुश्किल है। इसके लिए बहुत ज़्यादा जान, बहुत ज़्यादा फिटनेस रिक्वायर्ड होती है, बहुत बड़ा जिगरा रिक्वायर्ड होता है। आपको फेंटा खाने के लिए तैयार रहना चाहिए, जैसे शोएब अख्तर कहते हैं। और यहाँ पे इरफान उल्लाह ने अच्छी बॉलिंग की है इस ओवर से पहले तक। ब्रेट ली कहा करते थे T20 क्रिकेट के आने के बाद कि बॉलर्स को अपनी ईगो घर रख कर आनी चाहिए। अगर वो साथ लेके चलेंगे तो T20 में मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। हवा में बॉल, फील्डर मौजूद है, यही आसानी से कैच ले लेंगे। फाइनली एक कैच लिया गया है फाटा की जानिब से। आसिफ अफरीदी थे फील्डर, लेकिन बहुत ही बाकमाल इनिंग खेल के वापस जाएंगे यासिर। बहुत कम हमने इतनी अच्छी इनिंग्स देखी है यहाँ पे इस टूर्नामेंट में। सबने बहुत एंजॉय किया इस इनिंग को। दोनों ही कैच आसिफ अफरीदी ने लिए, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। और इरफान अब बेहतर महसूस कर रहे होंगे यासिर को आउट करने के बाद। जो ओवर में अर्ली रॉन उन्हें छक्का लगा, उसका बदला उन्होंने चुका दिया। 2 गेंदों के बाद ही उन्होंने यासिर से छुटकारा पाया, लेकिन यासिर को दाद मिलेगी क्योंकि बहुत लाजवाब इन्होंने मैच विनिंग इनिंग खेली है
107 रन बनाकर वापस हुए रावलपिंडी 156 पर 2। शानदार इनिंग खेलने के बाद यासिर का वापस जाना होगा, और एक और बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर जिन्होंने शायद जस्टिफिकेशन नहीं किया अपने टैलेंट के साथ, हैदर अली। बहुत ज़्यादा मौके मिले हैं और शायद मिलते चले जाएंगे, क्योंकि टैलेंट बहुत है, स्किल बहुत है। एग्जीक्यूट करने में कहीं ना कहीं थोड़ा मसला ज़रूर आता है। 134 की स्ट्राइक रेट, 91 इनका बेहतरीन स्कोर, 2343 रन बना चुके हैं, और अब तो एक्सपीरियंस भी आ गया है फैसल 121 मैचेस का। जी बिल्कुल, लेकिन हैदर का टैलेंट जो है वो लाजवाब है। कहीं कहीं लगता है शायद आपको कि अपने रोल के हिसाब से उनको ये अंडरस्टैंडिंग होने में मसला हुआ कि उनका रोल क्या है। डिफरेंट टीम्स में उनको डिफरेंट रोल्स दिए गए। एक यंग बैटर को जिनके करियर का बिल्कुल अर्ली स्टेज हो, समटाइम ये आजमाइश बहुत बड़ी आजमाइश होती है, और शायद अभी खुद को एक्सप्लोर कर रहे हैं हैदर। यहाँ एक्सप्लोर करते करते 121 मैचेस हो गए, और शायद अब वो वक्त आ गया है कि अपने टैलेंट को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट किया जाए। उमर अमीन की भी लाजवाब इनिंग है, 44 रन की, अच्छा साथ दिया है यासिर का। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप पे वाइड हो जाएगा इरफानुल्लाह की जानिब से। अब सिर्फ 11 रन दूर है रावलपिंडी ये मैच जीतने को। अगर वो कैचेस लिए जाते फैसल तो शायद सिचुएशन डिफरेंट होती, शायद वो पार्टनरशिप पहले टूट जाती, नए बैटर आते तो प्रेशर डेफिनेटली पड़ता पिंडी पे, क्योंकि 170 रन इतने बुरे रन नहीं थे इस पिच पे। बिल्कुल, फील्डिंग एक ऐसा शोबा है, और कैचिंग इन पर्टिकुलर ओवर द इयर्स हम मुसलसल डोमेस्टिक क्रिकेट में देखते हैं कि इस फैक्टर पे काफी सारे मैचेस का नतीजा बदलता है। अच्छी तरीके से टाइम किया हुआ शॉट, उतनी ही अच्छी प्लेसमेंट उमर अमीन की जानिब से, तगड़ा शॉट 4 रन के लिए। उमर को ये नया रोल मिला है नंबर 3 पे बैटिंग करने का, और टीम को वो इनिंग्स को गाइड कर रहे हैं। बड़ी काम और कैलकुलेटेड इनिंग्स है उनकी। लो फुल टॉस थी, स्लो डिलीवरी थी, ऐसा लगा नहीं कि बॉल बिल्कुल बैट के बीचों बीच आई है, लेकिन आजकल प्लेयर्स के पास जो पावर है और जिस तरह के बल्ले हैं। सरवर अफरीदी की डाइव राय कहां गई 17 के बाद 162 पर 2। सात रन 18 बॉलों पे रावलपिंडी को मैच जीतने के लिए 4 रन मिल जाएंगे। ये इजी पिकिंग्स है, खराब बॉलिंग। आप टांग पे इस तरीके से बॉल नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ बल्ला ही लगाना होता है बैटर को, और फाइन लेग का फील्डर अगर सर्कल के अंदर हो तो यकीनी चौका है ये। अच्छी गेंद मिल गई थी हैदर को, रॉन्ग लाइन शाहिद की जानिब से, और हैदर ने उसका पूरा फायदा उठाया। ये एक ऐसी नॉक है हैदर के लिए जिसमें ज्यादा प्रेशर नहीं है, इसलिए सुकून से वो खेल सकते हैं। यहाँ भी थोड़ा सा आप देखें कि ऑफ स्टंप की जानिब गिरते चले जा रहे थे, लेकिन लाइन ऐसी थी कि उन्हें 4 रन मिल गए। 55 रन पर मौजूद थे यासिर जब पहला कैच ड्रॉप हुआ था। काश अगर वो कैच लिया होता तो डिफरेंट होती सिचुएशन। यहाँ पे उमर अमीन को भी मौके मिले। ये बहुत ही आसान कैच था, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड चांस था। याकिर जावेद ने सीधा ही कैच छोड़ दिया। इसके बाद यासिर को चांस मिले, काफी देर बॉल हवा में रही, लेकिन इस लेवल पे सलमान को ये कैच लेना चाहिए था। लेकिन जिस कैच की मैं बात कर रहा था वो थोड़ा मुश्किल चांस था, जब 55 पे थे थोड़ा आगे गिरा था। एक शुरू में कैच यासिर का गिरा था एक बार, फिर जब 55 पे थे तब उनको चांस मिला। लेकिन अच्छी बात है कि इन अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज किया है यासिर ने और सेंचुरी बनाई। एज अ बैटर बिल्कुल आपको ये करना होता है, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसको ऐसे यूज करें कि मैच को ही साइड पर लगा दें, और ऐसा ही किया यासिर ने। जिस कैच की पहले ओवर में आप बात कर रहे हैं वो एजाज के पास गया था, वो भी थोड़ा लेट हो गए, देखने में वो मुश्किल लगा, लेकिन अगर वो जल्दी जज कर लेते तो वो भी एक चांस था।
इन चंद ही बॉलों में लगा कि हैदर का जो बैटिंग रिदम है उससे भी दूर हैं। फिर उन्हें जोर से हिट लगाने की कोशिश की, क्रीज पे उनका बैलेंस भी अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा ऑफ स्टंप की जानिब गिरते चले जा रहे हैं। इवन जो बाउंड्री भी लगाई, लेकिन प्रेशर नहीं है। उमर अमीन का उन्हें साथ हासिल है। 2 रन बाकी बचे हैं। क्या उमर अपनी नेक्स्ट सेंचुरी मुकम्मल कर लेंगे? डिजर्व तो करते हैं। या बिल्कुल आपने सही कहा कि डिजर्व करते हैं। रावलपिंडी को अब 2 रन चाहिए 14 बॉलों पे। उमर अमीन, कूल एंड काम उमर अमीन। हवा में बॉल है, आउट हो जाएंगे। ये बहुत ही अनलकी डिस्मिसल होगा। आसान सा कैच रेहान आफरीदी के लिए। शायद जल्दी में थे कि 50 रन किए जाएं 2 रन के साथ, लेकिन अपनी विकेट गवा बैठे। नो डाउट बहुत ही शानदार कूल एंड काम इनिंग खेल के वापस जाना होगा उमर अमीन को। अच्छी बॉलिंग यहाँ शाहिद की, थोड़ा क्रेडिट उन्हें देना होगा। नौजवान है, मिक्स बैग रहा आज का दिन उनके लिए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो आप लेंथ देखें इनटू द पिच और अवे फ्रॉम द लेफ्ट हैंडर, उमर को बॉल को ड्रैग करना पड़ा ऑन साइड की जानिब। रॉन्ग चॉइस ऑफ शॉट, और पहले ही उन्हें पता लग गया था कि ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलने वाली। 48 रन बनाकर आउट हुए उमर, सिर्फ 38 गेंदों पर। 167 पे 3 रावलपिंडी। दो रन्स बनाने के लिए कप्तान खुद उतर आए हैं। शादाब खान बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, बहुत ही स्किलफुल, बहुत ही पैशनेट क्रिकेटर। 136 की स्ट्राइक रेट, 950, 2600 रन्स, 91 रन का बेहतरीन स्कोर है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 रन ही दरकार हैं। जी बिल्कुल, और शादाब की बैटिंग की सलाहियतों से इनकार नहीं, बहुत ही बासलाहियत बैटर हैं। वंस अगेन जो नेशनल टीम में जिस नंबर पे वो खेलते हैं अपॉर्चुनिटी कम ही मिलती है, लेकिन उनमें कितनी अहलियत है ये हम सब जानते हैं। स्लो बाउंसर बीट किया, बहुत जल्दी खेल गए, और ऐसा ही होता है जब पेस ऑफ होती है। लेग बाय का ये स्कोर, और इसके सिंगल के साथ ही स्कोर बराबर हो गए। 18 ओवर्स के बाद 168 पे 3। इनटू द पिच कटर था, शादाब जल्दी खेल गए। यही वो डिलीवरी थी जो उन्होंने उमर अमीन को भी की थी। अच्छे हुनरमंद बॉलर हैं शाहिद, नौजवान, नई गेंद से स्विंग किया और पुरानी गेंद से वेरिएशंस दिखाई। ज़्यादा कंसिस्टेंसी इन्हें लानी होगी अपनी गेम में, लेकिन अच्छा स्पेल था। 4 ओवर्स 2 विकेटें हासिल की 38 रन देकर। लेकिन डेफिनेटली आज की जो शाम रहेगी वो रहेगी रावलपिंडी के नाम और यासिर और जमान के नाम, जिन्होंने बैटिंग और बॉलिंग में मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी। और अब जिस रस्मी कार्रवाई ही बाकी है इस मैच का फैसला होने में। आसिफ अफरीदी आ गए हैं और रुक गए हैं, क्योंकि कुछ मसला है, स्क्रीन क्लियर नहीं की गई है। अब सही है, अब आप विनिंग स्ट्रोक खेल सकते हैं। यहाँ बैकफुट पे कट और पुश के दरमियान एक शॉट है, ये डॉट बॉल। क्रूशल हैं अभी तक इस टूर्नामेंट में रावलपिंडी और पेशावर की टीमों ने क्लियर डिफरेंस दिखा दिया बाकी टीमों से। और इसके साथ ही रावलपिंडी ने ये मैच जीत लिया है। नेशनल T20 में अनडिफीटेड रहे हैं, 5 के 5 मैचेस रावलपिंडी ने जीते हैं। बहुत ही अथॉरिटेटिव विन। ये टीम कुछ ना कुछ करने आई है। बिल्कुल ये चेहरे, ये जो सेलिब्रेशन, ये शो करती है कितना अच्छा ये कैंप है और कितनी अच्छी क्रिकेट रावलपिंडी खेल रही है। ये मैच आसानी 7 विकेट से जीता है और अपनी अथॉरिटी को बरकरार रखा है नेशनल T20 में। बिल्कुल अच्छी एफर्ट थी रावलपिंडी की जानिब से। जमान खान बॉलिंग में और उसके बाद यासिर बैटिंग में। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही है, और जिसका सहरा जाएगा यासिर के नाम, जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की यहाँ पे रावलपिंडी की, उनकी साइड की ये दूसरी सेंचुरी। इससे पहले ज़ीशान मालिक ने एक सेंचुरी स्कोर की। डिसअपॉइंटेड होंगे खुशदिल शाह।
अपनी टीम की परफॉर्मेंस से। कैचिंग बहुत ख़राब रही, फील्डिंग, ग्राउंड फील्डिंग बहुत ख़राब रही। हमें लगा था कि 170 रन थोड़े चैलेंजिंग होंगे रावलपिंडी के लिए, लेकिन उनकी ख़राब फील्डिंग के बायस ये बहुत ही आसानी से ये मैच हार गए। जी बिल्कुल, और एक प्लेटफॉर्म भी सेट था। बैटिंग में भी आप सोच सकते हैं कि शायद 15-20 रन उन्होंने कम किए, लेकिन ये वो सोचेंगे बाद में। इस वक्त तो रावलपिंडी की टीम खुशी से ये जीत कबूल करेगी। सुपर 8 में 2 मैचेस जीत चुके हैं। इस टूर्नामेंट में वाहिद अनडिफीटेड टीम है रावलपिंडी। हालांकि जो पिछले राउंड के मैचेस हैं शायद वो अब काउंट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उनकी 5 मैचेस की अनडिफीटेड जो रन है वो जारी है। और ये विनिंग शॉट शादाब, इससे आपको जाहिर हो रहा है कि कितने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से रावलपिंडी ने ये विक्ट्री हासिल की। यंग और एक्सपीरियंस प्लेयर्स का अच्छा इम्तिजाज है रावलपिंडी की टीम में। 7 विकेटों से बहुत ही ज्यादा उन्होंने आसानी से फाटा को मात दी। यार फैसल, एक टीम के तगड़े होने का अंदाजा आप लगा सकते हैं उनकी बेंच स्ट्रेंथ से। यहाँ पे रावलपिंडी की बेंच स्ट्रेंथ बहुत ही तगड़ी है, जिसमें मेहरान मुमताज, नासिर नवाज, अब्दुल फसी ऐसे प्लेयर हैं जो कि सारे ही बहुत टैलेंटेड हैं और वो बेंच पे मौजूद हैं। उनकी जगह नहीं बन पा रही है। ये शो करती है कि कितनी तगड़ी टीम है रावलपिंडी की। बआसानी ये मैच जीत लिया है। 48 रन बनाए उमर अमीन ने, 6 रन बनाए हैदर अली ने, लेकिन एक नाम जो स्टैंड आउट करता है इस कार्ड में वो है यासिर खान, जिन्होंने शानदार सेंचुरी स्कोर की। 107 रन बनाए सिर्फ 59 बॉलों में और अपनी टीम को 18.2 ओवर्स में मैच में जीत दिलवाई। फाटा की टीम बॉलिंग, इरफान अच्छी उन्होंने आगाज किए। नए बॉल से इरफान और शाहिद ने बॉल को मूव कराया, लेकिन शायद जो आसिफ अफरीदी से तवक्कुआ थी और एक्सपीरियंस्ड आकिब से वो पूरी नहीं हुई। मिडल में भी खुशदिल शाह जो नॉर्मली गोल्डन आर्म हैं वो भी विकेट हासिल करने में नाकाम रहे। फील्डिंग भी कोई इतनी अच्छी नहीं रही। ऑल इन ऑल फाटा को ड्राइंग बोर्ड पर जाना होगा और अपने प्लान्स को रिविजिट करना होगा, एक्सिक्यूशन को बेहतर बनानी होगी। अभी बहुत मैचेस पड़े हैं इस टूर्नामेंट में, तो उनके पास चांस होगा कि वो कमबैक कर सकें। 169 जैसे अली ने कहा कि लग रहा था कि एक ट्रिकी रन चेज होगा, लेकिन जो यासिर ने जब आगाज किया उससे पहले जीशान आउट हुए, लेकिन शायद उसके बाद ये यासिर के वो 2 शॉट एक ही ओवर में, क्लासिकल क्रिकेटिंग शॉट्स, उमर अमीन, प्योर ब्यूटी एंड ग्रेस ऑफ अ लेफ्ट हैंडर, और उसके बाद द पावर शो फ्रॉम यासिर। विकेट के चारों जानिब उन्होंने स्ट्रोक्स खेले, बॉलर्स को आड़े हाथों लिया, शॉर्ट पिच बॉल हो, आगे गिरी हुई गेंद हो, स्लॉग स्वीप्स, यू नेम इट। और ये बहुत जबरदस्त छक्का था, लेकिन जो सबसे बड़ा छक्का था जो स्टेडियम की छत पे गिरा और सेंचुरी को सेलिब्रेट किया डेविड वार्नर की तरह, ये वो छक्का जिसकी मैं बात कर रहा था। उसके फौरन बाद ये आउट हो गए, लेकिन अपना काम कर गए थे आउट होते हुए। उमर अमीन ने अच्छी बैटिंग की, अच्छी स्टाइलिश इनिंग थी, अपने 50 रन मुकम्मल करने गए ही थे कि अपने विकेट गवा बैठे, टॉप एज हुआ और यूं आसानी शादाब ने कवर की जानिब खेल के एक सिंगल हासिल किया और अपनी टीम को अनडिफीटेड रखा इस टूर्नामेंट में। चलते हैं, देखते हैं पहले मैच समरी को। 168 रन बनाए थे 20 ओवर्स में, 83 रन की इनिंग खेली थी सलमान ने। जमान की 3 विकेट, काशिफ और जांदाद की 1-1 विकेट, लेकिन बहुत ही आसानी से ये जो स्कोर है चेज कर लिया रावलपिंडी ने 18.2 ओवर्स में और सेंचुरी बनाई यासिर खान ने। उमर अमीन ने 48 रन बनाए। रावलपिंडी ने यह मैच बआसानी 7 विकेट्स से जीत लिया। काफी कुछ सोचने को होगा यहाँ पे फाटा की टीम को, क्योंकि बहुत ही खराब फील्डिंग देखने को हमें मिली। बहुत सारे आसान कैचेस को ड्रॉप किया गया और अगर आप बड़ी टीम को चैलेंज करना चाहते हैं जैसे कि रावलपिंडी की बड़ी टीम है तो आपको मैक्सिमम चांसेस लेने, इवन हाफ चांसेस को भी फुल चांसेस में कन्वर्ट करना होगा, तभी आप बड़ी टीम को चैलेंज कर सकते हैं। और अभी तक 2 टीमें हैं, पेशावर और रावलपिंडी, दे आर द टीम्स टू बीट। लेकिन अभी काफी टूर्नामेंट पड़ा हुआ है और आगे हम देखेंगे कि मजीद सख्त मुकाबले देखने को मिलेंगे। तो ये अर्ली स्टेजेस हैं, फाटा भी रिकवर कर सकते हैं, लेकिन अब शायद वक्त हुआ जाता है ग्राउंड में पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन का।
और नीचे हमारे साथी सिकंदर बख्त तैयार हैं. ओवर टू यू सिकंदर. Thank you so much, Shah, and welcome to the post-match presentation of another exciting game of the Super 8 in the National T20. And today it was Rawalpindi's day, won this comprehensively by 7 wickets, beating FATA in this match. Before we give away the individual awards, we'll welcome our guest today to hand over the prizes. Mr. Shakil Khan, to my left, former international player and manager media, Pakistan Cricket Board. Thank you for joining us. And Mr. Bilal Qureshi, senior manager, umpires and match referees for Pakistan Cricket Board. Welcome to you as well. I'll request Mr. Bilal Qureshi to please step forward and hand over the AH Group Outstanding Performance of the Match Cash Award of 25,000 rupees to Yasir Khan for his 107 of just 59 balls, which had 8 boundaries and 8 sixes. शानदार परफॉर्मेंस रही यासिर की. यासिर ज़्यादा दूर ना जाएं क्योंकि अब मिस्टर शकील खान आपको प्रेजेंट करेंगे Jazz Player of the Match Trophy and Cash Award of 25,000 rupees, and that goes to you as well. यासिर खान के 107 रन, जिसमें 8 चौके 8 छक्के और सिर्फ 59 बॉल्स की इनिंग्स थी. यासिर से हम बात भी करेंगे. यासिर, शानदार परफॉर्मेंस रही है. ऐसा दिन कभी-कभी आता है किसी बैटर के, कोई भी बॉलर सामने टिक नहीं पाता. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा और बस काफ़ी मेहनत की है इस दिन के लिए, तो अल्लाह का शुक्र है जिस तरह सोचा था उसी तरह हुआ है. इस टूर्नामेंट में पहले 150 है आपका, क्या आज डिफरेंट किया है या बैटिंग में ऐसी क्या चेंजेस लाए हैं कि आपको इतने फ्रीली शॉट्स लग रहे थे आज? पहले सेम प्लान था, लेकिन आज कप्तान से मेरी बात हुई. शादाब ने मुझे जब इनिंग ख़त्म हुई उसने मुझे समझाया कि यार जो आपके जोन में बॉल आती है आपने उस पर हिट करनी है, जो अच्छा बॉल है उसको रोटेट करते रहना. तो अल्लाह का शुक्र है वो उस माइंडसेट से खेला हूँ तो रिजल्ट अच्छा हुआ है. आपने तो जोन की बाहर की बॉलें भी मारी हैं. बस वो अल्लाह का शुक्र है बस. चलिए यासिर, बहुत मजा आया आपकी इनिंग्स देख के. कांग्रेचुलेशंस. Yasir, the player of the match today. Now I'll request Khushdil Shah to please have a word with us, the captain of FATA. Khushdil. बैटिंग पहले करते हुए जो स्कोर आप लोगों ने किया वो इतना बुरा नहीं था, ऑलमोस्ट 170 तक पहुंच गए थे. बॉलिंग में आज क्या गलतियां हुई हैं? जी बिल्कुल, हमने रन बहुत अच्छे किए थे, अच्छा टोटल था, लेकिन हमारी बॉलिंग भी अच्छी है और ये था कि हमने मिस फील्डिंग किए, कैचेस ड्रॉप हुए उस वजह से. और दूसरा यासिर खान बहुत अच्छा खेला है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया, उसने 100 मारे, तो उस वजह से वो हमसे मैच लेके गए. पिच नंबर 7 जो है ये अभी तक दिखाया कि सबसे बेहतर पिच है यहाँ का. आपने कोई टारगेट रखा हुआ था या आप खुश थे 168 से? जी बिल्कुल, जिस तरह टास्क में भी यही बोला था कि हम 150 160 प्लस कर लेंगे और वही हुआ. लेकिन हमारी बॉलिंग जो है वो उस तरह उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो लाइन से नहीं हो रहा था उनसे. लेकिन ये था कि हमने बीच में से जो मिस फील्डिंग हुई है, कैचेस ड्रॉप हुए, उस वजह से वो हमसे मैच लेके गए. अभी भी तकरीबन 5 मैच और बाकी हैं, तो कौन से ऐसे एरियाज फील्डिंग के अलावा हैं जिनको आप चाहेंगे कि टीम जो है ज़रा करेक्ट कर ले जल्दी? जी बिल्कुल, बैटिंग और बॉलिंग अगर हम जिस तरह हमारे साथ प्लेयर है और जिनकी जो रोल है उसी मुताबिक से इंशाल्लाह खेलेंगे तो इंशाल्लाह हम कम बैक कर लेंगे. चलिए, हार्ड लक टुडे एंड गुड लक फॉर द कमिंग गेम्स. ये थे खुशदिल शाह, द कैप्टन ऑफ फाटा. नाउ आई रिक्वेस्ट शादाब, द कैप्टन ऑफ रावलपिंडी, टू टॉक टू अस. शादाब, ऐसे कोई बैटर मिल जाए तो उसको आप अकेले भेज दें ग्राउंड, बाकियों के आने की ज़रूरत नहीं है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से टॉस पे भी मैंने यही बात की थी कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड है वो अभी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्योंकि उसमें फेलियर हो सकते हैं जिस तरह की जिशान मलिक का फेलियर था, लेकिन उसको एक्सेप्ट किया जाए. और क्योंकि जब फेलियर एक्सेप्ट किए जाएंगे तो ऐसी इनिंग्स आपको नज़र आएंगी, उसके लिए थोड़ा पेशेंट होना पड़ता है. लेकिन हमारी टीम की ये ब्यूटी कि सब यंग है, फेयरलेस अप्रोच के साथ आते हैं. तो इसमें ये है कि अगर आप एक ही बैट्समैन आपकी अगर उसकी इनिंग लगती है तो वो डेफिनेटली वो मैच जीतते हैं. ये नहीं है कि क्योंकि इम्पैक्टफुल इनिंग होती है, वो परफॉर्मेंस वाली इनिंग नहीं होती. तो ये चीज़ एज ए कैप्टन मैं हमेशा डिमांड करता हूँ. मैं चाहे इस्लामाबाद यूनाइटेड हो या इधर भी जब मैं कैप्टनसी करता हूँ तो मेरी ये कोशिश होती है कि ये चीज़ डिमांड की जाए. पिछले मैच में टॉप ऑर्डर थोड़ा सा फेलियर हुआ था, आज वो चीज़ करेक्ट हो गई. बॉलिंग में आपने फील किया कि आपने पकड़ा हुआ था ऑपोजिशन को, शायद 170 के करीब ना जाते, ये ओके विद इट कि जिस तरह इतने रन थे इस पिच पे? मुझे लगता है ऐसी पिच पे तो ठीक है, थोड़ा स्लो साइड पे था, लेकिन मुझे लगता है कि जो बाउंड्री है और जो विंड का फैक्टर था उसके हिसाब से मुझे लगता है कि जो हमारा बॉलिंग यूनिट था उसने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है, स्पेशली फास्ट बॉलर, क्योंकि इनएक्सपीरियंस और जिस तरह की विंड थी, क्योंकि हाफ हिट छक्का जा रहा था, तो वो मैनेज करना मेरे ख्याल से डिसेंट बॉलिंग
साइड हमारी है हमेशा से, लेकिन जिस तरह की आज उन्होंने शो किया स्पेशली फास्ट बॉलर ने, 10 से 15 रन मुझे लगता है कि वो शॉट थी जिसकी वजह से हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से हमने वो मैच जीता। नेशनल T20 एक बड़ा प्लेटफॉर्म है उन प्लेयर्स के लिए जो आगे आना चाहते हैं और अपना शोकेस करना चाहते हैं टैलेंट। आपने और नवाज ने पिछले मैच में परफॉर्मेंस दी थी। अपने बेंच स्ट्रेंथ को आप अभी कुछ थोड़ा बहुत छेड़ना चाहेंगे या आप कहेंगे कि पूरे 11 मेरे लग रहे हैं अच्छे आ गए 2 मैच जीतने के बाद सुपर 8 में? नहीं, बेंच स्ट्रेंथ तो यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि 9 मैचेस अगर हम इंशाल्लाह फाइनल के लिए पहुंचते हैं 10 दिन में, तो वो फटीक फैक्टर तो डेफिनेटली होगा। काफ़ी चीज़ें चेंज होती रहेंगी, लेकिन यही है कि स्ट्रेंथ भी रहे प्लेइंग 11 में, लेकिन जो हमारी बेंच स्ट्रेंथ है उसको डेफिनेटली आजमाया जाएगा क्योंकि हर प्लेयर का ये एम होता है, क्योंकि जिस तरह के ये डोमेस्टिक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है तो सब प्लेयर चाहते हैं कि वो खेले, तो डेफिनेटली उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और होपफुली वो नेक्स्ट मैचेस से हम स्टार्ट कर देंगे। चलिए शादाब, good luck and well played today. Thank you. All right, so that concludes the presentation with Rawalpindi winning this match by 7 wickets against FATA. यहाँ खबर आपने सुनी कि रावलपिंडी ने यह मैच बहुत आसानी से 7 विकेट से जीता। जरा पॉइंट्स टेबल पे नजर डालते हैं। पेशावर की फॉर्म जारी है, 2 मैचेस खेले हैं, 2 ही मैच बहुत आसानी से जीते और नेट रन रेट पे जरूर नजर रखिए। 3.24 की नेट रन रेट, 4 पॉइंट्स। रावलपिंडी ज्यादा दूर नहीं है, नेट रन रेट में भी 1.20 की रन रेट है, 4 पॉइंट्स। सियालकोट, कराची वाइट्स, लाहौर वाइट्स, इन सबके 2-2 पॉइंट्स हैं। लाहौर ब्लूज, एबटाबाद और फाटा ने अभी तक कोई पॉइंट हासिल नहीं किया। टॉप 4 टीमें सेमीफाइनल खेलेंगी। कहीं मत जाइए क्योंकि अगला आने वाला मैच बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। यासिर शाह की एबटाबाद का मुकाबला होगा शोएब मलिक की सियालकोट टीम से नेशनल बैंक स्टेडियम कराची से। बस थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होते हैं। पहला ब्लड ड्रॉ कर लिया है शाहिद ने। Slashed, picked up nicely, and it will sail away into the stands. Gone over short fired, bad ball put away. Using the long handle and it's gone all the way. It's just been easy picking. What a knock from him. Just 56 balls and he's single-handedly. इसके साथ ही रावलपिंडी ने ये मैच जीत लिया है।